السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں سید فیصل کریم. خلیل جبران کہتے تھے کہ دیر شوڈ بی اے اسپیس ان دیٹ ٹوگیدرنیس، یعنی کہ آپ اکٹھے ہو پھر بھی اسپیس ہونا چاہیے. انہوں نے پتہ نہیں کس کپل کے لیے کہا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے سوشل یہ کرونا. ہاں جی بالکل، تو بالکل ایسا ہی تھا. تو آج ہم آبویسلی کرونا پہ بات کریں گے، لیکن یہ بات کریں گے کہ ہماری قوم چاہے جتنی بھی مشکل سے کیوں نہ گزر رہی ہو، ایسے نہ ایسے کوئی ہیروز آ جاتے ہیں جن کو صرف ہمارے ملک نہیں باہر کے ملک بھی ان کے جو ہے معترف ہوتے ہیں. ایسا سر آتے ہیں کہ ملکہ برطانیہ خود ان کو کال کر کے مبارکباد دیتی ہیں. ہم جلدی سے جاتے ہیں ٹاپ سٹوریز کی جانب اور پھر شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنی ٹاپ سٹوریز کی جانب جائیں، بہت اہم ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. شہباز شریف اپوزیشن لیڈر، ان کا جو ہے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. عطا تارڑ نے اس کی تصدیق کر دی ہے. شہباز شریف اپوزیشن لیڈر، ان کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے. اور ابھی آپ کے ساتھ ایک اچھی خبر یہ شیئر کرتے چلیں کہ پاکستانی قوم فلاحی کاموں میں، جیسے ہم تمام تو لوگ جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ وہ اپنی پہچان رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے. اور ایسے میں دو پاکستانی نوجوانوں کی کاوشوں اور انتھک محنت کو نہ صرف دنیا میں سراہا گیا بلکہ دولت مشترکہ کے پلیٹ فارم سے خود ملکہ برطانیہ نے انہیں پوائنٹس آف فلائٹ ایوارڈ سے نہ صرف نوازا بلکہ ان کو خود کال کر کے مبارکباد کی تھی. رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر اس پہ مزید بات کریں گے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہماری خوش قسمتی یہ کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں برٹش ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر. مسٹر ٹرنر, we are so glad and we are absolutely honored to have you in our show Bakhbar Savera. How are you this morning? And please tell us about this Point of Light Awards and how do you select people? Madiha, assalamu alaikum, good morning. It's a great pleasure to be with you and all your viewers this morning. The Points of Light is an award that was started in 2018, after the Queen hosted all of the Commonwealth heads of government in London. And since then, she has honoured volunteers right across the Commonwealth in 53 countries for their acts of generosity and of volunteering. So it's all about the spirit of volunteering and the Commonwealth. And it was a real honour last week that she chose RISC. It was a recognition of their impact, of course, of the huge homegrown talent there is for these sorts of projects in Pakistan, a great tradition of philanthropy and giving. And she wanted to personally speak to them, so I took the call from her, and she spoke to both Huzaifa and Hassan at RISC. It was a great honour to celebrate their inspirational work and their impact and all that they've done on food security during these difficult times. All right. Mr. Turner, I would like to ask that you came here in Pakistan in December, before this bad pandemic took over the world. We would like to know which part of Pakistan did you visit, if you ever got the chance to visit? Well, I have to be very careful here because I'm a diplomat and I don't want to say that I favour one part of the country over another. But if you'll let me try my Urdu, Pakistan bahut khoobsurat mulk hai. And you will remember that shortly after I arrived, I changed the travel advice to say that we really wanted to encourage more Brits, more people to come and see all that the beautiful country has to offer. I visited Lahore and Karachi on several occasions. I even went skiing in Malam Jabba in the Swat Valley. And I really hope to be able to visit the north of the country. That's the place I want to get to next when we're allowed to get up there. Mr. Turner, we are really happy that your Urdu speaking skills are getting better. We really want to ask you that since Pakistan and UK have very strong political ties and they've won a very good history, so what exactly is UK doing to support Pakistan in these tough times of COVID-19? Yeah, well, you're right, Madiha, that we are very close friends and we've got a deep history. اور دوست ہی مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں. We have to be together. Thank you. We have to be together in these difficult times. And I will be honest, Pakistan, I think, has shown real international leadership in the way it's responded to this coronavirus. It's had, like all countries, this very difficult debate about how it balances the health threat, the needs for economic activity, and the protection of the poorest people. And the UK has been absolutely committed to support on that. We have so far specifically donated about £7 million of health assistance to help Pakistan fight COVID. And just last week we were working with Pakistan
with Health Minister Dr. Mirza on a global effort to raise money for a vaccine that might help us get a handle on this terrible virus. Mr. Turner, since you told that you went to Malam Jabba, that's one of the most beautiful places to go and ski. Plus, you had your plans to visit North and Gilgit-Baltistan. That's the best area. And even when the Duke and Duchess came over here, they went over there. How are you personally liking Islamabad, one of the most beautiful capitals of the world? And how are you in these days coping up with this COVID-19? Yeah, I mean, it's difficult for us all, isn't it? And you're right, Islamabad is a beautiful city. And I must say, one of the things which I think we're all appreciating is there has been less traffic, there is less pollution. And I can see the Margala Hills, it is clearer. So I feel very lucky to be here. I am here with my family. They're all here with me here in Pakistan. When I can, I do like a walk in the Margalas. But like everybody, I am taking precautions. I am socially distancing. I am keeping 2 meters apart from other people. When I am outside, wearing my face mask. And I'm always washing my hands and doing everything I can to protect my family. And I think everyone must be doing the same at the minute. And everyone should be doing the same to protect their families. Mr. Turner, it's your first summer in Pakistan, and I'm sure you must have tried Pakistani mangoes by now. Have you tried Pakistani mangoes, and which one you like the most? Now again, I have to be diplomatic. So I have heard so much about the mangoes. पाकिस्तानी आम सबसे अच्छा यानी बहुत मीठा है. So I'm going to try and taste as many as I can, and then you're going to have me back on your show, right. And I will try and tell you which ones I like the most. Right. It's not the mangoes that are sweet, it's the people of Pakistan that are also sweet. Mr. Turner, obviously we're talking about food. I would like to take liberty to ask you about the Pakistani cuisine as well. But since you hail from UK, and one thing common between UK and Pakistan is one of the sports that we love a lot and you love a lot, and that is cricket. So I would like to ask you that which Pakistani player you liked the most when you were in your days over there in university and you were trying to follow the cricket? Yeah, I mean, cricket, you're right, is part of that kind of deep ties, one of the deep ties between us. And I was particularly pleased in February to help organise for the MCC, the oldest cricket club in the world, to come to Pakistan under the captaincy of the great Sri Lankan batsman. It was the most wonderful experience. And I have said publicly that I would like nothing more than one day to see England back here in Pakistan again. And you have the most amazing players at the minute. And it's not only the current squad, it's the great names of the sport, some of whom I've been honoured to meet, Wasim Akram. These players are just, they're a delight for the whole world to watch. So I really hope this summer, somehow, we will all get to enjoy this game that is in our shared blood. Okay, coming back to the food question, I'm sure you must have tried Pakistani Desi cuisine because you're here like for good more than 6 months. Have you tried any Desi cuisine, biryani, korma, pulao, anything that you have tried? And no diplomacy in of that. Course, and no diplomacy. Of course. The food, bahut mazedar kind of hai. We're not strangers to Pakistani food in the UK because we have a lot of wonderful Pakistani restaurants in the UK. Yes, you do. And I must confess, one of the challenges when I visit somewhere like Lahore is that all I seem to do when I visit is eat. Every meeting, whatever the time of day, I just get more and more food. But I've enjoyed some iftars during Ramadan. So if you had to force me, I do like a pakora, and frankly, anything with dal and anything with saag, and I am very happy. Wow, we right. have absolute Desi cuisine hai, which we have tried, and then we just want to take a message from you, from the public of Pakistan, for the people of Pakistan. And especially in this regard, the risk, the kids that have done wonders and they have got the reward as well. Well, I think to go back to risk, enormous congratulations to those guys. They've really honoured Pakistan.
and shown by personally taking a message from Her Majesty. They've showcased the best of the country, how we must support and work together in these difficult times. And to them and to everybody, I would urge them all to keep your distance, to wash your hands, to stay safe and protect your families, and together we will get through this. And together we will get through this. Thank you so much. We had Mr. Christian Turner, British High Commissioner. Thank you so much for Turner. It was an absolute pleasure to have you on our show. बिल्कुल, और it was a pleasure to have Turner. मैं इतनी खुश हूँ। हाँ जी, लाहौर की उन्होंने बात की, साग की भी उन्होंने बात की, पुलाव की बात कर दी, और ये बड़ी अच्छी बात है उन्होंने कि सारे खाने हैं। क्रिकेट की भी बात करी, he's a fan as well. Exactly, Taking cricket the name के of fan great है। वसीम अकरम और वकार यूनुस. So बहुत जिस वजह से हमारी इनसे बात हुई थी, अब उन लोगों से बात करना Absolutely. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फैसल इन लोगों ने हमारा बड़ा नाम रोशन किया है, और इनकी खिदमत को सराहते हुए खुद मलिका बरतानिया ने इनको कॉल करके मुबारकबाद दी, तो वो एक बहुत बड़ी ऑप्शन थी। बिल्कुल, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद हुज़ैफा के जो को फाउंडर और सीईओ हैं रिस्क के, और कुछ ही देर में हसान इरफान भी ज्वाइन करेंगे। तो हुज़ैफा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोग मुस्तहिक हैं, इसलिए क्योंकि वी ऑल हैव बीन थ्रू दिस यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट एंड ऑल, और हमारे जहन में था कि यार यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट है, बस इसको चलाना है, लेकिन आप लोगों ने इसको एक बड़े लेवल पे ही जो है कंसिडर कर लिया। इस छोटे से प्रोजेक्ट जो यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट था, वहाँ से लेके इतने बड़े प्रोजेक्ट पे कि लाखों लोगों को आपने भूखा नहीं रहने दिया, और फिर अवार्ड आपको जो है वो मलिका बरतानिया से मिला। प्लीज़ टेक अस थ्रू दिस जर्नी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के मुझे इनवाइट करने के लिए। ऑब्वियसली जी, ये जर्नी इट स्टार्टेड बैक इन 2015। मैंने अपने 3 दोस्तों के साथ लम्स के अंदर इस जर्नी को स्टार्ट किया था, और उस वक्त इंस्पायर्ड बाय माय मदर, जो कि घर में ये कई सालों से 35 सालों से मेरे घर में खाने का एक सिलसिला जारी था, एंड टेकिंग हर इंस्पिरेशन। आइडिया बड़ा सिंपल सा था कि मेरे घर इतने ज़्यादा लोग खाना खाने आते थे, और हमारे पास बहुत ज़्यादा खाना जो है शादियों में हम देख रहे थे, डिफरेंट जगहों पर देख रहे थे, ज़ाया हो रहा था। सो ये छोटा सा आइडिया मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ डिस्कस किया, एंड वी स्टार्टेड पिकिंग आउट फूड ऑन आवर ओन कार्स। हमने सिर्फ एक फेसबुक पेज बनाया, और हमने कहा कि जिसके पास भी खाना है वो इन नंबर्स पर कॉल करे, हम उनके घर आएंगे, रेस्टोरेंट आएंगे, जहाँ पर भी होगा आएंगे, और खाना सेव करके अपनी गाड़ियों पर उन बस्तियों में ड्रॉप करेंगे जहाँ लोग भूखे सो रहे हैं। एंड दैट इज़ हाउ स्मॉल इट स्टार्टेड। वी नेवर न्यू कि इतना बड़ा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इतनी ज़रूरत है, और जिस तरह इसके अंदर आते गए, इट टर्न्ड आउट टू बी अ मैजिकल जर्नी फॉर अस एज वेल। हमें नहीं पता था कि सिर्फ ये आपके लिए, बहुत सारे लोगों ने, यंग लोगों ने आप लोगों से इंस्पिरेशन इस हवाले से। अच्छा, रिस्क के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हसान इरफान ने भी ज्वाइन कर लिया है, हम उनको भी बाखबर सवेरा में वेलकम करेंगे। अच्छा हसान, आप ये बताइएगा कि आप लोगों को कैसे अप्रोच किया, क्योंकि मलिका बरतानिया ने खुद कॉल की थी, और इतना बड़ा अवार्ड जिससे आपको नवाजा किया, हुआ क्या था? हाउ डज इट हैपन? I'm still spellbound by that experience. First off, thank you for having us over. So as I said, it was a magical experience. A 20 minutes long call with the Queen herself. और we started off by talking about Pakistan. अच्छा, मैं चाहूँगी इरफान आप उर्दू में हमसे बात करें, क्योंकि हमने क्रिश्चियन टर्नर से बात करी, उनकी मजबूरी ये थी कि वो तो उर्दू में बात कर नहीं सकते, पर ये आप तुम्हारे बंदे हैं भाई। चलिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या कहते हैं, अब एक्सपीरियंस बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस था जी। हमने 20 मिनट बात की, मैंने, डॉक्टर टर्नर ने और क्वीन ने, और अमेजिंग एक्सपीरियंस। उनको पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से याद है। 1961 में लास्ट टाइम हर रॉयल मैजेस्टी उन्होंने विजिट किया था पाकिस्तान। शी एक्सप्लेन्ड कि बहुत क्लियरली उनको याद है। शी मेंशन्ड द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, how beautiful it was, कितना प्यारा अच्छा एक्सपीरियंस था उनके लिए, और मेरे लिए पर्सनली मेरी लाइफ के सबसे एपिटोम्स में से एक था। बिल्कुल। अच्छा हमजा, ये बताएं, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि लोगों को भी ताकि इस हवाले से आगाही हो कि एक तो ये जो आपने खाना पहुंचाने का काम किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल, कल से जब हम इसको डिस्कस भी कर रहे थे कि जी ये आप लोग घर में बनाते हैं, या फिर कोई इसके लिए अलग किचन सेटअप किया हुआ है, या फिर देयर इज़ अ लेफ़्ट ओवर फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स दैट यू टेक, मतलब लेफ़्ट ओवर वो वाला नहीं कि जो झूठा हो, बट जो भी उनके पास एक्स्ट्रा बच जाता है, तो ये किस तरह आप लोग करते हैं? हम लोग 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे जिनसे हम लोग फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को एड्रेस करें।
एक्सेस फूड एक एंगल है, एक हमारा प्रोक्योरमेंट है जहाँ से हमें खाना मिलता है। रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल, FMCGs, मार्केट्स जो हैं उन सब का वेस्ट उसको हम अपने फूड बैंक पे प्रोक्योर करते हैं। हमारी टीम ऑफ वॉलंटियर्स, हमारी टीम ऑफ ऑन ग्राउंड जो लोग हैं वो उसको सॉर्ट करते हैं। फिर हमारे जो पार्टनर्स हैं, डिफरेंट NGO पार्टनर्स, उसके अलावा डिफरेंट जो हमारे फूड बैंक्स हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, वहाँ पे हम इस खाने को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आइडेंटिफाइड फैमिलीज को। हमारा जो डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट है वो उन फैमिलीज को आइडेंटिफाई करके उनके डोर स्टेप तक पहुंचना है। अगर हम आपको ये बता रहे हैं कि कोई फैमिली ज़रूरतमंद है तो हम आपको उसकी एक मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू तक दे सकते हैं कि वो कितनी ज़रूरतमंद है, कितने अरसे तक के लिए ज़रूरतमंद है, और सिर्फ खाने के अलावा उनकी स्किल की क्या ज़रूरत है, उनकी एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, उनकी हेल्थ की क्या ज़रूरत है। ये आपने इस तरह बड़ी हम अच्छी बात की कि ये सिर्फ रिस्क तक नहीं है बल्कि आगे से उनकी हेल्थ पे, उनकी एजुकेशन पे भी आप लोग काम करें। हुज़ैफा, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आप सब माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त फाउंडेशन, गाइस आर यंग, और आप इतनी अच्छी फाउंडेशन को लेके चल रहे हैं, इसको मज़ीद पूरे पाकिस्तान तक आपका बढ़ाने का प्लान है आप लोगों का? जी बिल्कुल, हमारा जो मॉडल है दैट इज़ एन एंटायरली टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल है। पूरा का पूरा हम लोग स्केल इस तरह कर रहे हैं जिस तरह हमारे अपने 4 फूड बैंक्स हैं। इसके अलावा हमारा जो स्केल अप करने का तरीका है वो आप इसी तरह समझ सकती हैं जिस तरह भी किसी आजकल आप कंपनीज को देख रही हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू बहुत रैपिडली एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हमारा मॉडल भी उसी के ऊपर बेस्ड है, और हम इंशाल्लाह अभी हम लाहौर के 2 शहरों के अंदर अपने फूड बैंक है, पाकिस्तान के 2 शहरों के अंदर। इसके अलावा हम मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं। हमने कोविड के अंदर 21 शहरों के अंदर काम किया है, और हम इंशाल्लाह हम मजीद शहरों के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं पाकिस्तान के थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। किस तरह हम एक टेक्नोलॉजी को मदद करते हुए जो लोकल NGO है उसको एक्यूप करके अपना फूड बैंक वहाँ पर उसके साथ पार्टनर करके बना सकते हैं। हमारी एक्सपेंशन जो है वो आसान है। हम किसी भी लोकल इदारे को ट्रेन करके उसको एक्यूप करके ऑन बोर्ड करके अपनी टेक्नोलॉजी देके वहाँ पर एक अपना ऑफिस खोल सकते हैं। तो हमारी एक्सपेंशन इस तरह हो रही है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और हमारे वर्चुअली जो पार्टनर्स हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आखिर में हुज़ैफा, मैं चाहूँगा कि हुज़ैफा आप और उसके बाद हसन आप दोनों इस पे सिर्फ कमेंट करते हैं मुख्तसरन। लाइक आप लोगों की लाइफ सेट है, इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप लोग जो है वो पास आउट हुए हैं, तो हमारे यहाँ की यूथ ये सोचती है कि जी बस पास आउट हो, जॉब लें एंड देन हैव अ गुड सैलरी और बाकी अल्लाह खैर सल्ला। ये क्या चीज़ है पाकिस्तानियों में कि जो उनको ये कहती है कि नहीं, अगर कोई बराबर में भूखा बैठा है तो हमें उसका भी ख्याल रखना है? वाई वॉलंटियरिंग? सबसे पहले हुज़ैफा आप एंड देन हसन आप। बट क्विकली प्लीज, हमारा टाइम कम है। हाँ, देखिए जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। एक पैशन का जज्बा है जो कि इनहेरेंटली जनरेशन से चलता आ रहा है इस कौम के अंदर, कल्चर के अंदर, रिलीजन के अंदर। मैंने अपनी वालदा से इनहेरिट किया है। मैं उनको बचपन से 30-35 साल से देख रहा हूँ, अपने घर में घर खुला है, लोग खाना खाने के लिए आ रहे हैं, और ये बेसिकली यही वैल्यूज़ हैं जो कि एक बच्चा जो है कल्चरली अपने एनवायरनमेंट में देखता है और सीखता है। ये पाकिस्तान जैसे कल्चर में, रिलीजन में एग्जिस्ट करती है तो हमें सबको नजर आती है। योर टेक ऑन दैट। हुज़ैफा ने बहुत अच्छा समराइज किया जी। हमारा कल्चर, हमारा दीन, और इनहेरेंटली हमारे अंदर ये है कि ये साथ वाले को भूखा नहीं देखना, एहसास और कंपैशन हमारे अंदर ठोंस दिया जाता है। ये उसकी ब्लेसिंग्स हैं जो हम इस काम में लगे हुए हैं। बेशक, बहुत शुक्रिया जी। हसन और हुज़ैफा हमारे साथ मौजूद थे। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, और बहुत ही मज़ा आ जाता अगर मास्टर दाऊद, उनको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मास्टर दाऊद सब जानते हैं, इस्लामाबाद में वो लोग जो रहते हैं, कि मास्टर दाऊद बड़ी तादाद में बच्चों को ग्राउंड में पढ़ाते हैं और 1 रुपया भी बच्चों से फीस नहीं लेते। और मास्टर अयूब जो हैं उनसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, चाहे वो मास्टर अयूब के स्टूडेंट हो या ना हो। हम जैसे बहुत सारे तालिब इल्म, हम भी मास्टर साहब को मास्टर साहब ही कहते हैं, और ये मास्टर साहब की मेहनत आज से नहीं है, ये कई बरसों से इस बड़े पार्क में बच्चों को तालीम दे रहे हैं। यहाँ पर बच्चे आके इकट्ठे होते हैं और वो हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के ट्रीट करते हैं, और देयर इज़ नो फीस, वो किसी बच्चे से कोई फीस नहीं लेते। इसी का एतराफ़ करते हुए, इन्हीं एतराफ़ करते हुए क्वीन एलिज़ाबेथ ने खुद उनको कॉल की। और ये मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है क्योंकि पाकिस्तानी हम उन तक हमारा पहुंचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन समहाउ क्वीन एलिज़ाबेथ ने उनको अप्रोच किया। इसी पे हम कहते हैं पाकिस्तानी तुझे सलाम। एक और बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट, आर्मी चीफ और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, और DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और बिल गेट्स ने पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम पर तबादला ख्याल किया। बिल गेट्स ने यह कहा कि जी पाक फौज इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए सिक्योरिटी मॉनिटरिंग से मुताल्लिक मौसर किरदार अदा कर रही है। बिल्कुल जी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद कहा कि पाक फौज की ये कौमी जिम्मेदारी है। सेहत आमा के हवाले से पाक फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है।
ہیلتھ کیئر ورکرز انسداد پولیو مہم میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور انسداد پولیو مہم کے ورکرز کرونا وبا میں بھی پیش ہیں. کرونا کے باوجود آئندہ چند ہفتوں میں انسداد پولیو مہم شروع کی جائے گی. ٹیلی فونی گفتگو کے دوران کرونا وبا کے خطرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق کرونا سے متعلق آگاہی کی فراہمی اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی گفتگو ہوئی. تو بل گیٹس ہماری تعریف کر رہے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس ینگ گنز ان کو ملکہ برطانیہ فون کر رہی ہیں اور انہیں ایوارڈز مل رہے ہیں. اس سے اچھی صبح کیا ہو سکتی ہے؟ بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور ہم نے اپنے شو کے آغاز میں آپ کو بریکنگ نیوز دے دی تھی کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ان کا بھی اب کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ مثبت آ گیا ہے. عطا تارڑ صاحب جو کہ اب سے کچھ دنوں پہلے خود کرونا میں مبتلا تھے, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. نہ صرف یہ بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگوں کے بہت سے رہنما شاہد خاقان عباسی ان کا بھی کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. مریم اورنگزیبہ کا جو ہے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. اور بہت سارے دوسری پارٹیز کے جو لوگ ہیں ان کی پیپلز پارٹی شرجیل میمن ہے, ایم کیو ایم ہے, پی ٹی آئی ہے, یہ کرونا ہر جگہ پھیل رہا ہے. یہ کوئی کلاس نہیں دیکھ رہا اور پاکستان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کی اگر ہم بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں سے مزید 101 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی اموات جو ہے اس کی تعداد 2356 ہو گئی ہے. دنیا بھر کی بات کریں تو کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 4,18,000 سے بڑھ چکی ہے. صرف امریکہ 1,15,000 اموات کے ساتھ اس وقت سب سے آگے ہے. تو مدیہ یہ جو کاؤنٹ ہے بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی بہت ساری دیگر مشکلات بھی بڑھتی رہی ہیں. اوبویسلی اس میں سے ایک جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایجوکیشن ہے کہ جو بہت زیادہ سفر کر رہا ہے. بالکل آپ نے بات بالکل صحیح کی. جو نجی اسکول ہیں, سرکاری اسکول ہیں, وہ تو بند ہیں کہ بچے اسکول میں نہیں جا سکتے. یونیورسٹیز بھی بند ہیں اور بہت سارے طالب علم آپ جانتے ہیں کہ ہاسٹل میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یہ وہ طالب علم ہیں جو زیادہ تر ریموٹ ایریا سے آتے ہیں یا کسی دوسرے شہروں سے آتے ہیں. اب ان کو کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے سیمسٹر کی پڑھائی کو وہ صحیح طریقے سے وہ پڑھ نہیں پا رہے. کرونا کی وجہ سے تعلیمی ادارے جیسے بھی ہم نے بات کی کہ بند ہے. جو آن لائن کلاسز ہیں وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ قبائلی علاقہ جات میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے یہ جو کلاسز ہیں یہ اٹینڈ کرنا اور ان سے سبق لینا اور ان سے سیکھنا کافی ذرا مشکل ہوتا جا رہا ہے. بالکل. اور ساتھ مدی اگر آپ کا بھی کبھی ان علاقوں کا جانا کبھی ایکسپیرینس ہوا ہو تو آبویسلی زندگی یہاں پہ اس حساب سے لوگ جی رہے ہوتے ہیں. تو اب ایسے میں یہ ٹیکنالوجی اور آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے, یہ تصویر دو منظر بیان کر رہی ہے. ایک اس علاقے کی خوبصورتی, لیکن اس کے ساتھ ہی کیونکہ دور افتادہ علاقہ ہے تو اس کے ساتھ کتنی زیادہ مشکلات یہ چیزیں ان کو درپیش آتی ہیں. تو ایسے میں ہم اب بات کریں گے, ایک بہت بڑا ایشو ایجوکیشن کا. سب کہہ رہے ہیں جی آن لائن کلاسز کر لیں, آن لائن ایگزامس لے لیں, لیکن اب ایسے میں یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کے جو انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں وہاں پہ ان فار فلنگ ایریاز میں 3G نہیں ہے, اگر ہے تو ڈس کنیکشن والے معاملات ہیں. تو مدیہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ کون ہے گیسٹ؟ بالکل جس حوالے سے بات کرتے ہیں سابطہ فاٹا کے 7 اضلاع میں سے صرف باجوڑ میں ایک مخصوص جگہ انٹرنیٹ کے سگنل آتے ہیں, جبکہ باقی جو تمام تر اضلاع ہیں وہاں پر 3G اور 4G سگنل جو ہے وہ بالکل بند ہے. اور انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو مقامی آبادی ہے وہ سوشل میڈیا پر کرونا وبا کی احتیاطی تدابیر کے رسائی سے بھی کافی زیادہ محروم ہے. اور اسی والے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈنٹ لیڈر سید محمد کاظمی, جن کا خود کا تعلق جو ہے وہ پارا چنار سے ہے. کاظمی صاحب ویلکم ٹو باخبر سویرا. مجھے بتائیں کافی عرصے سے آپ اسٹوڈنٹس اس جدوجہد میں مصروف ہیں, آپ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات دوچار رہی ہیں. بتائیے آل ٹوگیدر کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس پرابلم سے گزر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ARY نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کرٹیکل اس سیریس ایشو پہ مجھے شو میں انوائٹ کیا بات کرنے کے لیے. تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ سٹرگل دیتا ہوں کہ میں نے 3G 4G ریسٹوریشن کے لیے کس طرح سٹرگل کیا. چونکہ میرا تعلق پارا چنار سے ضلع کروم, میں نے پریس کانفرنس کیا وہاں پہ پارا چنار پریس کلب پہ. پھر میں نے اپنے جو ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں سینیٹر, MNA, MPA سے رابطہ کیا. پھر میں نے ضلع انتظامیہ DC EC سے میں ملا ہوں, پھر ایون ملٹری آفیشل سے ملا ہوں. پھر میں نے صوبائی حکومت سے رابطہ کیا. اجمل وزیر اس بات کی گواہ ہے, میں نے 4 to 5 ٹائمز ان کو کال کیا. پھر میں آ کے فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ
कुछ मिनिस्टर्स तक अप्रोच किया कि प्लीज़ ये 21वीं सदी इस जदीद तरीन दौर में 10 मिलियंस का पॉपुलेशन का इलाका 3G 4G इंटरनेट जैसे बुनियादी सहूलियात से बिल्कुल महरूम है, तो हमारे हाल पर रहम कीजिए, स्टूडेंट्स के हाल पर रहम कीजिए, ये 3G 4G रिस्टोर किया जाए। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तकरीबन ये स्ट्रगल मैं 2 महीनों तक करता रहा। फिर मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन दायर किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले हियरिंग पे ये ऑर्डर है चीफ जस्टिस साहब का मेरे पिटिशन पे, जो मैंने पिटिशन दायर किया था कि मोहम्मद, ये जो पिटिशन आपने दायर की थी, ये कौन से महीने में दायर की थी? ये मैंने 7 अप्रैल को दायर किया था और 14 अप्रैल को फर्स्ट हियरिंग में पहली समाअत में चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया था कि फिल फॉर 3G 4G रिस्टोर किया जाए एक्स फाटा में कबायली अजला में, क्योंकि ये इनका बुनियादी हक है। लेकिन अभी तक सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत और जो हमारे इदारे हैं PTA IT मिनिस्ट्री बिल्कुल इसमें सिंसियर नहीं है रेस्टोरेशन में। अच्छा, तो चले ये तो आपने फिर इंतज़ामिया की बात बता दी। ये बताएं कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, उससे आपकी बात हुई है, उनका इसमें हवाले से क्या फ़ीडबैक है और तालीमी सिलसिला जो है अब ऑनलाइन मुमकिन जो है वही है, तो ऐसे में जो नए अजला हैं KPK के, वहाँ पे अब क्या सिचुएशन बनने जा रही है, यूनिवर्सिटी क्या कहती है, इस हवाले से ज़रा बताएं। जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से रब्ता करते हैं, टीचर्स को अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो वो कहते हैं कि आप लोग HEC से रुजू करें। जब हम HEC से रुजू करते हैं तो HEC की तरफ से ये बयान आता है कि ऑनलाइन क्लासेस से तंग है। मुझे ये बताया जाए, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मोर देन 50% स्टूडेंट्स और अनएबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। तो हम किस तरह ऑनलाइन क्लासेस से तंग है? हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं। तकरीबन अभी 3 माह हो गए, मोर देन 50%, ये सिर्फ कबायली अजला की मैं बात नहीं कर रहा, कबायली अजला में मोर देन 30,000 स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास से महरूम है। बाकी मैं यहाँ पे कश्मीर के लिए भी आवाज़ उठाता हूँ जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान, जनूबी पंजाब और जो बलूचिस्तान के बहुत से एरियाज़ है वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो मैं HEC चेयरमैन से एक सवाल करता हूँ कि आपने किस बेस पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी, जबकि आपको पता था कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। ये मोहम्मद, आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन जो वो रेज़ किया है। हम आपके पास दोबारा आते हैं, इसी वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुझे ज़िया बंगर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। अभी हमारे साथ मोहम्मद कासमी साहब मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि 50% से जो ज़्यादा तलबा हैं उन बेचारों के पास तो इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। तो अब ये बताएं कि ऑनलाइन तालीम का सिस्टम इनके लिए तो मुमकिन ही नहीं है, तो अब क्या किया जाएगा? ये जो तालीमी कमी है, जो इनके लिए इतना बड़ा वॉइड आ गया, गैप आ गया है, इसको आप लोग पूरा कैसे करेंगे? ये हमारी डिजिटल पॉलिसी में हमारी ये चीज़ें शामिल भी थी कि हमने सूबे के तमाम जो अजला है और हर एक गाँव तक हमने डिजिटल कनेक्टिविटी हमारे कंपोनेंट है, उसके ज़रिए हमने इन तमाम अजला में इंटरनेट की फैसिलिटी हमने प्रोवाइड करनी है। और इसके लिए फिर ये था कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो उनका यूनिवर्सल सर्विसेज फ़ंड है USF, उसके थ्रू पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट की फैसिलिटीज़ जो है वो उसके लिए फ़ंड मुख्तस किया गया है और इसी में हमारा खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है। और इसमें कबायली अजला में मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए हैं। इस तरह फाइबर ऑप्टिक का जो काम था वो PTCL के ज़रिए तमाम कबायली अजला में अब तक मुकम्मल हो चुका है। मेरे ख्याल में 10% काम रह चुका है, तो कबायली अजला में फाइबर ऑप्टिक का मुकम्मल काम हो गया है। चतराल तक हम फाइबर ऑप्टिक की सहूलत हम पहुँचा चुके हैं। इस तरह जो हमारे टेलकोज जो कंपनीज है उनको भी साहब ये लेकिन ज़रा ये भी बताएं ना कि अब सूरत हाल ये बन रही है कि तलबा मुजाहरे कर रहे हैं, वज़ीर आज़म तक इसका नोटिस ले चुके हैं, तो फिर क्या रुकावट है? आप कह रहे हैं कि ये फ़ंड होगा और फिर पूरे मुल्क में इंटरनेट की सप्लाई होगी, तो कैसे दूर की जाएगी ये रुकावट? कब तक दूर की जाएगी?
जो तलबा जो एहतजाज कर रहे हैं और जिस पे जैसे आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पे नोटिस लिया हुआ है, तो ये डायरेक्टली हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये हायर एजुकेशन का इशू है, क्योंकि हायर एजुकेशन ने ऑनलाइन क्लासेस का अपना वो सिलसिला शुरू किया हुआ था, और जहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वहाँ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में या जिन एरियाज़ में इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है कि तलबा एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि उनका तालीमी जो सिलसिला है वो ख़राब हो रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं वाज़ेह कर दूँ कि जो हमारा USF फंड है वो फेडरल, चूँकि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटर हो रहा है, फेडरल उससे फंड पूरे पाकिस्तान को जा रहा है। जी जी। तो ये चूँकि सूबाई मसला नहीं है, क्योंकि हमारी तो कोशिश ये है कि जो फेडरल से जितना सूबे को फ़ंड आएगा और जिस मद में हमारे पास फ़ंड आएगा, हमारी कोशिश ये है कि हम तमाम सूबे में इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये 18वीं तरमीम के बाद और हमारा जो डिजिटल पॉलिसी है उस पॉलिसी के मुताबिक हमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा को हमने इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड करनी है। तो जो हमारे स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली हायर एजुकेशन के साथ वो इशू है, और हायर एजुकेशन उसमें वो लगी हुई है और उस इशू को वो हल करने की बहुत कोशिश। शुक्रिया ज़िया साहब आपका। मुशीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद है। और अल्लाह करे हुकूमत की जानिब से सपोर्ट किया जाए ताकि ये जो इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स फंसे हुए इनकी मुश्किलात दूर हो सके। दोबारा से हम जाएंगे, हमारे साथ स्टूडेंट लीडर मौजूद हैं सैयद मोहम्मद कासमी। अच्छा मोहम्मद, ये बताइएगा, एक तो आपने बताया कि आपने जो 2 सवाल रेज़ किए उसमें से एक तो था कि आपने हाई कमीशन से भी आपने बोला, AGC से भी बोला, लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है वो क्या है, दूसरा मुतालबा क्या है जो कि आपने सामने रखा है? सबसे पहले HEC चेयरमैन जो है उन्होंने वफाकी इदारों को, वफाकी हुकूमत को एतमाद में क्यों नहीं लिया था कि मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ऑर्डर देने जा रहा हूँ, आपके पास इस तरह मैकेनिज़्म है कि 100% इंश्योर कर सके कि तमाम स्टूडेंट्स को 100% इंटरनेट एक्सेस हो जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का ऑर्डर दिया, और अब जाके तकरीबन 3 महीनों से मोर देन 50% स्टूडेंट्स के क्लासेस मुसलसल ज़ाया हो रहे हैं। तो मुझे HEC चेयरमैन ये बताए कि वो ऑनलाइन एग्जाम्स किस तरह दे सके, वो ऑनलाइन असाइनमेंट किस तरह सबमिट कर सके, वो ऑनलाइन क्विज किस तरह दे सके, अगर उनके तकरीबन 3 माह से ऑनलाइन क्लासेस ज़ाया हो रहे हैं। और अभी मैं मुतालिबा करता हूँ HEC चेयरमैन से कि फिल फॉर ऑनलाइन क्लासेस मनसूख किया जाए, और ये इस सेमेस्टर का मुतय्यन वक्त ख़त्म हो गया है। इस सेमेस्टर में कॉलेज और स्कूल फार्मूला के तहत तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए, और नेक्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन बेशक स्टार्ट कर दे, लेकिन तब तक जब 100% इंटरनेट एक्सेस हो तमाम पाकिस्तान की जितनी भी स्टूडेंट्स है, बशमूली कबायली अजला, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और कश्मीर। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे स्टूडेंट लीडर सैयद मोहम्मद कासमी, और वो मुसलसल ये कह रहे थे कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं रिमोट एरिया से आके हॉस्टल में काम में पढ़ रहे होते हैं। जब यूनिवर्सिटीज़ बंद है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि अपने घरों में जाके जिन जिन अजला से आए हैं वहाँ पे, क्योंकि कनेक्टिविटी के, इंटरनेट कनेक्टिविटी के इतने इशूज़ हैं। तो उन्होंने जो मुतालबात सामने रखे, उन्होंने कहा किस तरीके से हमने ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, अपनी असाइनमेंट कैसे सबमिट कराएंगे, हम क्विज़ कैसे देंगे जब हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी ही नहीं है। 3 महीने इनके ज़ाया हुए हैं। साथ में इनका ये कहना था कि आप ये जो सेमेस्टर्स को सारा मनसूख करें, और आप जब तक इंटरनेट की फैसिलिटी को इंश्योर नहीं करेंगे तमाम तर अजला में, तब तक आप हमारा नया सेमेस्टर जो है वो शुरू ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब इंटरनेट नहीं है तो आप जो है वो मदिया ऑनलाइन आगे चल ही नहीं सकती। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि पूरे मुल्क के लिए इम्तहान की घड़ी है, ऐसे में वाकई जो एग्ज़ाम्स हैं वो अब मुलतवी किए गए हैं। कौमी राब्ता कमेटी ने बड़ा फैसला किया है, शेड्यूल्ड और गैर शेड्यूल्ड इम्तहानात को फौरी मुलतवी करने की हिदायत कर दी है। सेक्रेटरी तालीम ने चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को ख़त लिख दिया है। कुछ तालीमी इदारे, मदारिस ने जून जुलाई में इम्तहानात लेने की दरख्वास्त की थी। सेक्रेटरी तालीम का कहना है कि ये इम्तहानात के लिए मौजूद वक्त नहीं है। सूबाई हुकूमतें इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई इम्तहान ना हो। लेकिन फैसल, आपको पता है, इसके अलावा आपको बताऊं कि अभी जून में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं उनका भी अभी जो पेपर्स होने वाले हैं, इसलिए बहुत सारे लोग जहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी के तलबा जो कि रिमोट एरियाज़ पे रहते हैं वो परेशान हो रहे हैं कि भाई 50% लोगों की तालीम मुतासर हो रही है। ऐसे में वो लोग जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है कि जब तमाम पर्चे मनसूख हो गए तो उनके पर्चा भी जो है वो मनसूख किया जाए। मज़ीद भी स्टोरीज शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। हमारे साथ हो गया
دوسری جانب لاہور پولیس میں کرونا وائرس کے وار تیزی سے جاری ہیں اور 8 شہادتوں کے ساتھ وبا سے متاثر افسران و اہلکار کی تعداد جو ہے وہ اب 135 ہو گئی، جبکہ 91 نے صحتیاب ہو کر واپس اپنی ڈیوٹیز بھی سنبھال لی ہیں۔ ایسے میں ایس ایس پی ایڈمن کرونا کو شکست دی ہے، انہوں نے دوبارہ آفس جوائن کیا ہے۔ ہمارے نمائندے یار محمد اس وقت کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی مالک کے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یار محمد پلیز۔ اس وقت ہمارے ساتھ سابق سی ٹی او اور موجودہ ایس ایس پی ایڈمن موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے کرونا کو شکست دی اور اب ان کا جذبہ کیسا دوبارہ ڈیوٹی جوائن کر کے۔ جی سر بتائیے گا کہ آپ کو جب کرونا وائرس ہوا تو کیا آپ کی سوچ تھی اس وقت اور کس طرح سے آپ نے اس کو جو شکست دی؟ یہ سائیکلوجیکلی میں اپنے جو ناظرین ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ سائیکلوجیکلی دے شوڈ اسٹے اسٹرانگ، کہ اگر پہلے تو ہم مانتے نہیں ہیں کہ کرونا ہے اور جب ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید ایسی بچنا نہیں ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کیوریبل ہے انشاءاللہ اور اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ۔ صرف سائیکلوجیکلی یو شوڈ اسٹے اسٹرانگ۔ دوسرا، جس کمرے میں آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے وہاں اپنی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی رکھیں، کوئی بک ریڈنگ، نماز، اس کے بعد کوئی تسبیح، کوئی کتابیں پڑھنے کا، موویز کا، تاکہ اپنا ٹائم ڈیوائڈ کر کے رکھے تاکہ آپ بور نہ ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کرونا جس طرح سے پنجاب پولیس، لاہور پولیس میں پھیل رہا ہے، ان کے جو متاثر ہوئے ہیں، جو اہلکار افسران، ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے کیا اقدامات، ان کے فیملیز بھی متاثر ہو رہی ہیں، ان کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ آئی جی آفس کو ریکویسٹ کی ہے، لکھ کے بھیجا ہے کہ جو شہداء ہیں ان کو شہداء کا درجہ دیا ہے اور وہی فائنینشیل اسسٹنس جو فیملی ہے ان کو ملے۔ باقی اس وقت جو اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے جو ان کے ٹیسٹ کی فی ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کو آئی جی صاحب جو ہیں وہ ریزنیبل اماؤنٹ ٹریٹمنٹ کے لیے اور باقی علاج معالجے کے لیے، میڈیسنس کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ ان کو دے رہے ہیں۔ یہ صرف جرمانے سے یا یہ صرف ڈنڈے سے یا صرف ایف آئی آر درج کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، صرف خالی دکاندار کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، سب سے پہلے انڈیویجول کی اور شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام احتیاط کرے اپنے آپ کو اس مرض سے بچانے کے لیے۔ تو ضرور آپ سے استفادہ کریں گے کہ اپنے آپ کو سائیکالوجیکلی اسٹرانگ رکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، تو ہم بھی آگے بڑھتے ہیں کیونکہ پیٹرول سستا ہے لیکن گاڑیاں آگے نہیں بڑھ رہی ہیں کیونکہ پیٹرول سستا ہونے کے بعد نایاب ہے۔ مختلف شہروں میں عوام در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مافیا کی دیدہ دلیری ہے، بوتلوں میں پیٹرول کی جو ہے وہ فروخت بھی جاری ہے۔ بالکل جی، اور فیصل میں تو اس کے کہوں گی کہ پمپس در پمپس جو ہیں وہ لوگ ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو گئے کیونکہ جس بھی پمپ پہ جائے پیٹرول تو وہاں پہ اویلیبل ہی نہیں ہے، تو پمپس پہ جو رش ہے اور جب لگتا ہے، جب پیٹرول ملنا شروع ہوتا ہے تو پھر وہاں پر مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بیچارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں پیٹرول لینے کے لیے کہ وہاں پر کرونا بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ بہت شارٹنگ ہے پیٹرول، تیل نہیں مل رہا ہے، کیوں بھائی؟ موت آئے وہ اچھی ہے۔ وزیر اعظم نے نوٹس لیا، کارروائی بھی ہوگی لیکن پیٹرول کی قلت برقرار، صارفین برس پڑے۔ موت آئے وہ اچھی ہے، دوائی لینے جانے گھر والوں کی، پیدل گھوم رہے ہیں، پیسے دیتے ہیں لیکن پھر بھی تیل نہیں مل رہا ہے، کیوں بھائی؟ پرائیویٹ کمپنیوں کے پیٹرول پمپ بند ہیں، پی ایس او پر کہیں طویل قطاریں تو کہیں 100 سے زیادہ کا پیٹرول نہیں ملتا۔ 100 روپے سے زائد نہیں ڈال کے دے رہے، صرف پی ایس او کے پمپوں میں مل رہا ہے۔ حیدرآباد میں تو پی ایس او پمپ پر بھی پیٹرول نہیں، مافیا بوتلوں میں 94 روپے لیٹر تک پیٹرول فروخت کرنے لگا۔ ہم 2 دن سے چکر لگا رہے ہیں، پیٹرول مل ہی نہیں رہا ہے، یہ 94 سے 100 روپے لیٹر جو ہے نا پیٹرول بیچ رہے ہیں۔ شہری کہتے ہیں سارا وقت تو 100 روپے کا پیٹرول لینے میں برباد ہو جاتا ہے، کام پر کب جائیں گے؟ 25 منٹ میرا تقریباً ہے کہ میں یہاں پر قطار میں کھڑا ہوا، ابھی 25 اور بھی لگیں گے۔ چیز تو سستا ہو گیا، وہ غائب ہو جائے گا۔ پیٹرول پمپ مالکان نے کورونا ایس او پیز کی بھی دھجیاں اڑا دیں، قطاروں اور رش کی وجہ سے وائرس پھیلنے کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ جی، تو آپ نے دیکھا کہ صورتحال پیٹرول کے حوالے سے کیا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے لے لیا ہے نوٹس۔ ایک اور بڑی اہم اور انفیکٹ اب بہت بڑی کیمپین کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بلیک لائیوز میٹر، اور امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ نسل پرستی کے خلاف جو مظاہرے ہیں یہ کئی دن سے جاری ہیں اور ہزاروں افراد یہاں پر شریک بھی ہوئے ہیں۔ صرف اب امریکہ میں نہیں بلکہ یورپین کنٹریز میں بھی بلیک لائیو میٹرز کو لے کے بہت بڑے ہم نے دیکھا ہے کہ اب جو پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور اب تو بات آل لائیوز میٹر پہ جا چکی ہے۔ ایسے میں ہی جو مظاہرے ہو رہے ہیں، ہمارے گلوکار علی سیٹھی وہ بھی شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے فیض کا کلام آج بازار میں پا بجولا چلو گنگنایا ہے، سنیے۔ Okay guys, my desi brain can't stop anymore. I have to think of Faiz when I'm right here in this protest. I have to, because what else is my Pakistaniyat good for? So I'm going to say it. Aaj bazaar mein
बजोला चलो आज बाजार में पा बजोला चलो representing my culture in New York City black lives क्या और ही सिर्फ ये नहीं खूबसूरत है, ये हाँ। कलाम चश्मे नम जाने शोरीदा काफ़ी नहीं आज बाजार में पाबा बाबा जोला जोला चलो। चलो। और सिर्फ ये नहीं कि अली सेठ यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि बहुत सारे, आपको मालूम है कि अमेरिका में रेसिज्म पीक पर है, तो बहुत सारे लोग जो कि सप्रेस होते रहे, ऑप्रेस होते रहे, वो तमाम तो लोग भी ऑल लाइव्स मैटर की कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू बात खबर सवेरा। और शो के इस हिस्से में बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम करने जा रहे हैं। एक तो ये कि मदिया बजट आने वाला है और क्या उसमें टैक्सेस होंगे और कोरोना के हवाले से क्या इम्पैक्ट होंगे, इस पर भी बहुत ज़्यादा बात करेंगे। ऑब्वियसली फीमेल्स के ये होंगे कि जी कॉस्मेटिक्स पे कितना लग रहा है टैक्स, तो ये ज़रूर इस पे बिल्कुल होंगे। लेकिन मज़े की बात, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि टैक्स नहीं लगेगा, ये तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी स्टैंड ले लिया, मुशीर ख़जाना ने भी बोल दिया कि जी देखते हैं, टैक्स अभी नहीं लगेगा। अभी पूरे 24 से 36 घंटे बाकी हैं, तो देखते हैं कि लगता है कि नहीं लगता। बिल्कुल कितना ठीक है। टैक्स लगता है। और क्योंकि ये वो टाइम है फैसल कि हर चीज़, हमारी इकोनॉमी बहुत बुरे तरीके से सफ़र की है। Absolutely. बहुत सारे लोग जिन्होंने पिछले साल टैक्स दिया था, जो टैक्स देने के काबिल हैं, अब वो बेरोज़गार बैठे हैं, वो नहीं दे सकते। महंगाई बहुत ऊपर जा चुकी है। तो अब इस पूरी तमाम तर चीज़ों को देखते हुए ये अब देखेंगे कि कितना अवाम फ्रेंडली बजट जो है वो लेके आया जा रहा है, ताकि लोग भी जो है ना वो सफोकेट ना मारे। और इसके साथ ही जैसा कि हम अब इंक्लूड करना चाह रहे हैं कि अगर एक चीज़ दुनिया में है तो उसके साथ आपने सर्वाइव करना है, तो उसके साथ कैसे सर्वाइव करना है, डर के नहीं बल्कि अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके। इसके हवाले से हमारे साथ पैनल भी होगा, इन सब पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले टॉप स्टोरीज। जी, तो अभी आपने टॉप स्टोरीज तो जान ली, और सबसे पहले भी हम बात कर लेते हैं सिंथिया रुचि के हवाले से, क्योंकि पिछले दिनों वो काफ़ी ज़्यादा मकबूल रही और ख़बरों में रही अपनी कुछ ट्वीट्स के हवाले से। और ट्वीट्स सिर्फ उनके अपने हवाले से नहीं थी, वो काफ़ी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनको एक्यूज़ करती रही हैं। लेकिन कल का जो अरशद मलिक साहब का जो प्रोग्राम था पावर प्ले, उसमें उन्होंने बहुत ही तहलका खेज कुछ ऐसे एक तो इंकशाफात भी किए और बड़े ज़बरदस्त किस्म के सवाल भी रेज़ किए हैं। बिल्कुल, एक साल की क़याम की इन्हें इजाज़त दी गई सिंथिया रिची को। इसके अलावा पहला वीज़ा सिर्फ 3 दिन का जारी हुआ और जो सफ़ीर के अलावा कोई जारी नहीं कर सकता है। ये सब जो इंकशाफात हुए वो हुए ARY न्यूज़ के प्रोग्राम पावर प्ले में, और सीनियर एंकर अरशद शरीफ जो है वो दस्तावेजी सबूत सामने ले आए। देखिए, तो भरपूर तरीके से अरशद शरीफ साहब ने काफ़ी तहलकेज़ इंकशाफात हैं अपने कल के पावरफुल किस्म के पावर प्ले में किए हैं। और इसी में वज़ीर इत्तलात शिबली फराज अब ये कहते हैं कि सिंथिया और ऐसे गैर मुल्कियों के वीज़ों के गैर मामूली इजरा की तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए और इन मामलात पर बाकायदा SOP बनाना अब ज़रूरी है। एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस के साथ, हमारे और डिसीजन मेकर्स के साथ अगर इनके राब्ते रहे हैं, जिसमें कि ऑब्वियसली जो रहमान मलिक साहब थे वो तो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर भी थे। तो और ये बड़ा क्रिटिकल टाइम था उस वक्त। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन वो सारे एक्शंस कोऑर्डिनेट हो रहे थे, हेल्थ मिनिस्टर, पोलियो कैंपेन, शकील आफरीदी, और ये हेल्थ सर्विस एकेडमी में रह रही थी उस वक्त। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये सारा ये कि वो बनता है एक पूरा एक कन्विंसिंग केस बनता है कि जो मेरिट करता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और फिर एक सिर्फ ये इस तक महदूद नहीं होनी चाहिए सिंथिया रिची तक। मेरा ख्याल है कि सारे वो केसेस जिसमें कि इस किस्म की बेकादियाँ मिलती हैं या उसमें कुछ एक पैटर्न सा नज़र आता है आने जाने का, तो ये सारी चीज़ें जो है तो ये देखने की हैं। मेरा ख्याल है कि जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं और हमारी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो उसको आई एम श्योर कि इस वाक़े के बाद पूरे जितने भी हमारे मुल्क में फॉरेनर्स हैं उनके केसेस को रिव्यू करेगी। और ऐसे में लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि पहले सिंधिया के केस की तहकीकात होनी चाहिए, इसके बाद चाहें तो इन मामलात की बड़े पैमाने पर इंक्वायरी ज़रूर करें। के पीछे पत्ती के पीछे ना लगा दे खुदा के लिए। सिंथिया का केस है, उसको प्रोब स्पेसिफिक करें, उसके बाद एक लार्जर पिक्चर को जरूर कर ले, क्योंकि डाइल्यूट हो जाएगा। अगर आप कहेंगे ना सन 85 से जितने भी आए थे फॉरेनर्स उन सब की इंक्वायरी होगी, तो फिर हम कभी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। और वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम किसी को। और अब हम ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि कल अगले माली साल का बजट पेश होने जा रहा है और यहाँ पर फैसला किया गया है कि इस बजट में कोई भी टैक्स
नहीं लगाया जाए। आई मेंटेन जो मैंने कहा है, देखते हैं कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि रिग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होने जा रही है पॉलिसी, कोरोना के बायस मुल्क की मईशत को झटके लगे, और झटके छोटे नहीं, शदीद झटके लगे। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि बहुत सारे जो डेवलपमेंट के लिए भी, जो प्रोडक्शन के लिए भी जो बजट मुख्तस किया जाता है, वो तो पूरे साल में अगर देखा जाए तो हम नहीं कर सके जो करना था, तो मेरे ख्याल से समा वो कहीं ना कहीं लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि वो वाली जो चीज़ें हैं, क्या हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब बात की जाए मुल्क की मजमूई तरक्की की, GDP की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो 1.5% कमी का इसमें इम्कान है, जो कि ऑलरेडी बहुत लो चल रही थी। डिफेंस बजट की बात की जाए तो 12% इजाफे की भी इसमें तजवीज़ बजट में शामिल है। बजट तो इंशाल्लाह अब आएगा, कल कितना अवाम फ्रेंडली होगा ये कल ही पता चलेगा, लेकिन लोगों के बजट के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है, लोगों को क्या लगता है कि कल का आने वाला बजट कैसा होगा। हमने लाहौर में भी पूछा, कराची में पूछा, क्या कह रहे थे लोग, आपको सुनवाते हैं। कि इन्होंने चीज़ें फिर दोबारा महंगी करनी है, कभी उम्मीद हुई नहीं, ना होगी। बजट में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, साल में वही गरीब, उससे ज़्यादा गरीब, अमीर, बहुत अमीर। गरीब आदमी अगर मिसाल के तौर पे 1000 रुपये कमा रहा है तो उसका बजट पहुंच गया 2000 रुपये, तो 1000 कहाँ से लाएगा? चोरी करे, डकैती डाले, घर से डाला, क्या करे? मतलब समझ में नहीं आ रहा इस बजट का। कोरोना ने इकोनॉमी को काफ़ी हर्ट तो किया हुआ है, लेकिन ये है कि फिर भी उम्मीद है कि खान साहब आवाम के बारे में सोच तो रहे। जो आम लोग हैं, जो कारोबार जिनके बंद है, उनके ऊपर रिलीफ देना चाहिए, जो टैक्स है माफ़ करने चाहिए। तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम माली हालात बहुत ज़्यादा लोगों के वीक हो चुके हैं। 4-5 माह से लॉकडाउन चल रहा है, कारोबार कुछ नहीं है, हालात काफ़ी डाउन हैं। हर किसी के घर में खाना नोशी की वजह से बहुत परेशानी की वजह सामना करना पड़ रहा है। हमें अपने आम जो हमारा है सारिफ है, जो आम आवाम है, उसको रिलीफ देना चाहिए, और हमें कोई ऐसा पैकेज निकालना चाहिए ताकि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें। सैलरीज़ जो है थोड़ी बहुत ज़्यादा कर दें, क्योंकि पिछले 3 माह से मेरे ख्याल से किसी को भी गवर्नमेंट को मिली होगी, और बाकी जो प्राइवेट है उनको बिल्कुल भी मतलब कि सैलरी वगैरह नहीं मिली है। कि ये बजट पिछले तमाम बजटों का रिकॉर्ड तोड़ देगा, ना सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ेगा बल्कि आप सबके ना, मैं समझता हूँ कि गरीब इसमें बहुत ज़्यादा पिस जाएगा। लोगों की तवक्कुआत हमेशा होती हैं, और लोग ये भी कहते हैं कि जी ऐसा कुछ नया नहीं आने वाला, तो क्या नया आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पैनल मौजूद है, खुर्रम शहजाद साहब जो कि माहिर मईशत है, और इसके अलावा टैक्स उमूर के माहिर अशफाक तोला साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोनों को अस्सलाम वालेकुम। और अशफाक साहब, आपसे हम बात शुरू करते हैं। मैं और मदिया भी हम यही बात कर रहे थे। मदिया कह रही थी भाई कोई टैक्स नहीं लगेगा, और मैं ये कह रहा था कि आप थोड़ा सब्र कर जाएँ, क्योंकि आवाम के साथ ये हमेशा किया जाता है कि बताया जाता है कि हम टैक्स नहीं लगा रहे, कि जो प्रोग्रेसिव टैक्स लगाना चाहिए, लेकिन पीठ पीछे रेग्रेसिव टैक्सेशन लगा देते हैं, हिडन चार्जेस की तरह। तो क्या एक्सपेक्टेशन है अशफाक साहब इस बजट से, अगर टैक्स की बात की जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा ठहर जाए, कल पता चल जाएगा। मगर सवाल ये है कि देखें, जब आपको 800 अरब रुपए के इजाफी आपको आमदन चाहिए और कोई ज़राए नहीं है, तो मैं समझता हूँ नया टैक्स लगे या ना लगे, पुराने टैक्सों में भी अगर रद्दो बदल होगा तो उसका इम्पैक्ट तो पब्लिक के ऊपर ही आएगा। थोड़ी बहुत जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, बहुत टेक्निकल मैं नहीं जाऊंगा, हाँ इतना मैं बताता हूँ जो मेरी इतलात हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत पे जो सेल्स टैक्स है वो फिक्स होने जा रहा है, और मेरा ख्याल है 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से वो फिक्स हो जाएगा। इसकी एक तजवीज़ दी गई है जो मुझे लग रहा है कि वफाकी काबीना कबूल कर लेगी। और बाकी देखें, अगर आप देखेंगे मईशत का जो हाल है कोरोना की वजह से, जैसे आपने भी देखा, आपके यहाँ पर एक रिपोर्ट दिखाई गई, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग बड़े माशी तौर पर बदहाली का शिकार हुए हैं। मगर मसला ये है कि वो इसलिए हुई कि आखिरी 10 दिन में जिस तरीके से लॉकडाउन खोला गया और जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे थे कि इकोनॉमिक एड दे के लोगों को घरों में रखा जाए, और नहीं हुआ। और जो आखिरी 10 दिनों का जो तजिया था, आप लोगों ने भी दिखाया और बाकी दूसरे मीडिया ने भी दिखाया कि जिस तरीके से उन इलाकों में जहाँ लो इनकम ग्रुप था और जिस तरीके से आवाम ने वहाँ शॉपिंग की, लग नहीं रहा था, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। अशफाक साहब हमारे साथ रहेगा, खुर्रम आपकी तरफ भी आ रहे, लेकिन अभी अपने नाज़रीन को एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह ये करना है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस से मुतालिक केस की समाअत हुई है। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शाह खालिद से। जी शाह खालिद।
جی بالکل، توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری عدالت نے جاری کر دی ہے۔ نواز شریف کی مسلسل عدم حاضری پر عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سابق صدر آصف علی زرداری کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی عدالت نے منظور کر لی ہے، جبکہ یوسف رضا گیلانی نے حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ کورونا کی وجہ سے بار بار پیش ہونا مشکل ہے، کئی ارکان پارلیمنٹ کورونا کا شکار جو ہے یہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت سماعت جو ہے وہ جاری ہے اور اس میں 2 سابق وزرائے اعظم اور ایک سابق صدر جو ہے یہ نامزد ملزم ہے۔ عدالت نے آج برہمی کا اظہار بھی کیا کہ نہ آصف علی زرداری عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور نہ سابق وزیر اعظم نواز شریف عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ اس وقت سماعت جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری عدالت نے جاری کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ شاہ خالد آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بجٹ کے حوالے سے، کل بجٹ آنے والا ہے، ہمارے ساتھ اشفاق طولہ صاحب موجود ہیں، خرم شہزاد ہمارے ساتھ ہیں۔ خرم آپ یہ بتائیے گا، بڑے بات کی جا رہی ہے کہ کل کا جو آنے والا بجٹ ہے اس میں ٹیکس زیادہ نہیں لگایا جائے گا، بزنس فرینڈلی بجٹ ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے بزنس اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہے کل آنے والے بجٹ سے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہونا کیا چاہیے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کیا ہوگا۔ جی بالکل، دیکھیں ایک وش لسٹ ہوتی ہے اور وش لسٹ ہمیشہ جو ہے وہ اس میں بھرمار ہوتی ہے انسینٹیوز کی، اس میں بھرمار ہوتی ہے سپورٹس کی، اور اس میں بھرمار ہوتی ہے ان چیزوں کی کہ ٹیکسز اور اخراجات ان کا ایک بیلنس ہو، اور ٹیکسز جو ہے وہ زیادہ نہ لگیں، اخراجات زیادہ ہوں اور اس میں سپورٹ زیادہ ہو۔ تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت کا جو بجٹ ہوگا یہ یا ہونا چاہیے، پہلے ہم بات کرتے ہیں ہونا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے جیسے کہ اس کا نام بھی ہے کرونا بجٹ۔ دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے سب سے پہلے جو اس کی سوچ ہے، یعنی کہ بجٹ کو شروع جو کرنا چاہیے یا پھر جو ہے جس طبقے سے سٹارٹ کرنا چاہیے وہ پورسٹ آف دا پور ہے۔ مثال کے طور پہ اس بجٹ میں غریب غربا کے لیے، ڈیلی ویجرز کے لیے، ان سب کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ایلوکیشن ہونی چاہیے۔ نمبر 1 بیسک فوڈ سپلائیز، بیسک میڈیکل سپلائیز پہ جو ٹیکسز ہوتے ہیں اس میں بالکل ختم ہونا چاہیے اس کو۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے لائف لائن کنزیومرز جو ہیں یہ بجلی کے، ان کو سب سے زیادہ انسینٹیو دینا چاہیے، اس میں کمی ہونی چاہیے، اس کے حساب سے ایلوکیشن ہونی چاہیے، جیسے گورنمنٹ نے 100 ارب کی جو ہے وہ بجٹ سے پہلے بھی کی ہے اور 1.2 ٹریلین کا جو انہوں نے پیکج دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو اوور آل ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس کی ہم بات کرتے ہیں 17% اگر ہے تو اس میں کمی ہونی چاہیے 1% یا 2% ان پر۔ تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کا جو بجٹ ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ پھر جو انڈسٹریز ہیں ان میں جو ہے ان کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں 3 ایریاز ہیں کہ ایک عام آدمی کو امپیکٹ کیسے ہونا چاہیے، انڈسٹریز کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے، انڈیویجولز کو جو بزنس مین ہیں ان کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات جو ایس ایم ایز ہیں، جو ہماری بیک بون ہے اکانومی کی، 40% جو ہے ان کا حصہ ہے اکانومی میں، 50% حصہ ہے لیبر فورس میں، ان کے لیے کیا ہوگا؟ جیسے کہ کچھ اس طرح کے بھی جو ہے وہ سجیشنز آئی ہیں کہ جو مائکرو فائنانس بینکس ہیں ان کے کارپوریٹ ٹیکس کو آپ 20% کر دیں، جو ابھی 29% ہے، سپر ٹیکس کو ختم کریں جو 4% آپ ایکسٹرا لیتے ہیں۔ تو دیکھیں ٹیکسز کا کم کرنا یا بالکل نیا ٹیکسز کا نہ لگنا، اور دوسرے اینڈ پہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس میں گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کرے۔ 4-4.5 ارب گورنمنٹ اپنے خود کو مینیج کرتے ہوئے لگاتی ہے، اس کو کم کرے، ایکسپینڈیچر کو کم کیا جائے۔ اوبویسلی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ اس پہ بھرپور فوکس بھی کر رہی ہے، لیکن اشفاق صاحب اب یہاں پہ 2 صورتحال بن رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی کرونا بجٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا کی سچویشن کی وجہ سے جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ڈر ہے کہ وہ بیٹھ جائے، ہم اپنے بجٹ میں اس پہ فوکس کریں۔ ہماری ایجوکیشن سفر کی ہے ہمیشہ سے ہی، اس پہ جتنا % آف بجٹ رہا ہے ہم اس پہ فوکس کریں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جیسے کہ ہم بھی چاہتے ہیں، جتنے ٹیکس پیئرز ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ جی کیونکہ ہمارے اس بار کاروبار نہیں ہے، سیلریز میں کٹ لگے ہیں، دس اینڈ آل دیٹ، تو ٹیکس جو کم سے کم لگے۔ بٹ سیئنگ دیٹ اگر ٹیکس کم سے کم لگایا بالکل بھی نہیں لگا تو جو ہمارے ٹیکس اہداف ہیں، جو ریونیو ہے بیسیکلی گورنمنٹ کی، وہ پھر ڈیفیسٹ میں جائے گی۔ جب وہ ڈیفیسٹ میں جائے گی تو اس کو کس طرح پورا کریں گے اشفاق طولہ صاحب؟ میں وہی کہہ رہا تھا، یہ وکشس سرکل ہوتا ہے اور اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ جیسے خرم بھائی نے بات کی نا کہ وش لسٹ ہوتی ہے، تو ہر کسی کی ایک وش لسٹ ہے،
पहली बात तो ये है कि अगर कोई ये कहता है कि मेरे टैक्स में कमी की जाए, जैसे कि कारोबारी हजरात हमारे भाई कहते हैं, तो वो तो इनकम पे टैक्स लगेगा ना। अगर आप पे आमदन है तो टैक्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हम अभी ईमानदारी से टैक्स पे ही नहीं कर रहे, और जो भी टैक्स हमारे होते हैं वो डायरेक्ट आपके विदहोल्डिंग टैक्स के तौर पे डिडक्ट हो जाते हैं, और उसी से ज़्यादा हम कभी ना बढ़े हैं ना बढ़ते जाएंगे। दूसरा मसला ये है, अगर आप देखेंगे कि जो कारोबारी तबका है, जो छोटा कारोबारी तबका है, जैसे खुर्रम ने भी कहा, जैसे एसएमई इंडस्ट्रीज है, वहाँ आपको मराहत जो देनी है वो ऐसी देनी है कि जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करे, और मेक इन पाकिस्तान का जो एक स्लोगन रज़ाक दाऊद साहब लगा रहे हैं, और जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने लगाया था 2 साल पहले, उस पे हम किस तरीके से अमल पैरा हो सकते हैं, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकती है ताकि हमारा करंट अकाउंट का खसारा कम से कम हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा, अब इसमें मसला पता है क्या आ रहा है सारा, कि हमारे पास जो, जैसे खुर्रम ने भी बात की कि जी मजमूई तौर पे जो गज़ाइयत के हैं या जो अपनी अदवाइयात हैं उन पे टैक्स कम से कम होना चाहिए, उसमें ऑलरेडी मेरा ख्याल है ना होने के बराबर ही है, और उनकी आमदन पे टैक्स जरूर है। अब आमदन पे भी अगर कोई टैक्स ना दे तो फिर तो मेरा ख्याल है कारोबार सरकार जो होगा ना, वो तो मेरा ख्याल है चलने के काबिल ही नहीं रहेगा। जहाँ तक आपने बात की कि एजुकेशन या हेल्थ, अब ये फॉर्चुनेटली कहूँ या अनफॉर्चुनेटली कहूँ, आपके 18th अमेंडमेंट के बाद 7th NFC में ये डिवॉल्व हो गया सूबों को, और इत्तेफाक से ये हुआ है कि 2 साल से हमारी FBR, इस साल तो चलिए कोरोना की वजह से काफ़ी इम्पेक्ट आया, उससे पिछले साल भी FBR की रेवेन्यू नेगेटिव हो गई, और उसकी वजह से 600 अरब की हमने कम कलेक्शन की। तो अगर 600 अरब में से मैं 60% देख लूँ, जो कि सूबों का हिस्सा बनता है 58.5%, तो वो कुछ कम से कम 235-40 अरब बनता है, वो सूबों को कम मिले हैं। अगर आप उनको ब्लेम करने जाएंगे तो उनको भी हक बजाने भी ये बात कहने की होगी कि वो आप हमें पूरा आप अपनी पोटेंशियल पे रेवेन्यू तो कलेक्ट करें, हमें अपना हिस्सा दें। अलोन सिंध को मेरा ख्याल है 88 अरब रुपए ज्यादा मिलते हैं अगर 4400 अरब का टारगेट FBR पूरा करती है। मगर अनफॉर्चुनेट है कि हमारी FBR की परफॉर्मेंस या हमारी जो इंतजामिया की जो परफॉर्मेंस है वो नहीं रही जो रहनी चाहिए। 2 साल में हम काफी डिक्लाइन कर, और वो जो टारगेट हमारा था वो टारगेट समहाउ अचीव नहीं कर सके। अच्छा खुर्रम, आप ये बताइएगा, देखिए बजट में 2 चीज़ें, एक तो आपने मुल्क के अखराजात कैसे चलाने हैं वो, और फिर दूसरा कि जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसका भी फैलादा बजट होता है। सो हम आपको क्या लगता है, क्योंकि जो पिछले साल का जो डेवलपमेंट के लिए जो बजट था वो समहाउ हमने देखा कि जब से कोविड-19 मुल्क में आया है बहुत सारे डेवलपमेंट के ऐसे काम नहीं हो पाए, तो क्या ऐसे कुछ चांसेस हैं कि वो जो बजट रखा हुआ था वो समहाउ आने वाले साल के कहीं ना कहीं इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए? पॉइंट है ये जो अखराजात है ना, बदिया अखराजात पे हमारे जो है ना ध्यान बहुत कम रहा है। हमारा ध्यान ज़्यादातर जो है टैक्सेस की तरफ रहा है, और यही इशू हुआ है कि हमारे यहाँ ग्रोथ जो है वो चोक हुई है या कम हुई है ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स। अगर हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को ज़्यादा करते और हम अपने जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट भी है, उसमें फेडरल के साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हैं, और ये इशफाक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ जो प्रोविंशियल एरिया भी है वो भी सही तरीके से खर्च नहीं कर रहा। उनके एम्बिट में जो बेसिक चीज़ें आ गई हैं, चाहे उसमें एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ट्रांसपोर्ट हो, सिक्योरिटी हो, कुछ भी हो, वो अपना रोल प्ले करें सही से। और गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है वो जो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एक मोहतात अंदाजे के हिसाब से अगर आप 10% से बढ़ाते हैं तो कम से कम 1 से 1.5% आपका जो है वो GDP में इम्प्रूवमेंट आती है। और इसकी वजह से देखिए उसके 2 हिस्से होते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये तो अभी तकरीबन 1350 अरब की बात हो रही है। अगर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाया जाता है, जो टैक्सेस यानी कि जो भी हमारे पास टैक्सेस हैं उसके अंदर जो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया जाता है और नॉन प्रोडक्टिव को कम किया जाता है उसी अमाउंट से या उसी जितना जिससे बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से इस वक्त सबसे ज़्यादा अमर की ज़रूरत भी यही है कि ग्रोथ लेकर आई जाए इकोनॉमी में, किसी तरह स्टिमुलेट किया जाए। जितना स्टिमुलेट किया जाएगा उतना ज़्यादा आप देखेंगे जब ग्रोथ चलेगी, पहिया चलेगा, बिजनेस चलना शुरू होंगे, इनकम भी आएगी, टैक्सेस भी आएंगे, ओवरऑल जो है आपकी बेहतरी आना शुरू होगी। अगर इस पर्सपेक्टिव से बनाया जाए बजट को, और मेरे ख्याल में
गवर्नमेंट करती भी है, बट ज़्यादातर हम नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स के तरफ जाते हैं। खर्चों को कम करें और नॉन प्रोडक्टिव खर्चों को कम करें और डेवलपमेंट खर्चों को जो है ये बात बढ़ाएं। आपने बिल्कुल सही की कि जो आने वाला जो बजट, इसको कोरोना बजट कहा जा रहा है, उसमें बेहतर ये होगा तमाम तर लोगों का, हर वो शख्स जिसका किसी भी तबके से ताल्लुक हो कि वो अपने खर्चों पे ज़रा हाथ हौला रखे। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ खुर्रम शहजाद मौजूद थे, हमारे साथ इशफाक तौला साहब मौजूद थे, आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब कल तो जब बजट आएगा तो कल पता चलेगा, वो कहते हैं ना कि जब चांद चढ़ता है तो फिर सारी दुनिया देखती है, तो अब कल ही पता कुछ चलेगा। देर पहले तो आप कह रही थी कि नहीं लगेगा, अब आप इस पे आ अभी भी गई मैं हैं कि कह रही हूँ चांद चढ़ता इंशाल्लाह है। नहीं, क्योंकि भाई वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद कहा है और उसके बाद मुशीर खजाना ने बोला कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैं तो उनकी बात पे अमल। शर्त डन 100 रुपए की, इससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं है। ओके हाँ, क्योंकि खर्चे भी कम करने हैं। खर्चे कर्जों की बात करें तो कुछ अच्छी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए। पेरिस क्लब ने 1 मई से 31 दिसंबर 2020 तक पाकिस्तान का जो कर्ज है वो मौखर कर दिया है। एलामिया में कहा गया है कि सहूलत से पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी में रिलीफ मिल सकेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का भी यही मौक़िफ़ था और उन्होंने जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक थे उनसे कहा था कि जो तरक्की पजीर ममालिक है उनके लिए ज़रूर ये रिलीफ दिया जाए। और अब हम यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। जितने भी आपके सवाल आते हैं फ़ौरन से तैयार कर लें कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि इसके बाद हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बार फिर आपको बाखबर सवेरा में कहेंगे खुशामदीद और एक बार फिर कोरोना वायरस की बात करेंगे, लेकिन इस बार हम न खुद डरेंगे न डराएंगे, क्योंकि जो इसका इलाज है वो एहतियात तो है और उसका एक दूसरा भी इलाज है, और वो है क्या, आपके जिस्म में जो मुदाफ़ती निज़ाम है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको तगड़ा कर लें, उसको बेहतर कर लें। बिल्कुल फैसल, और मुझसे ज़्यादा शायद बेहतर इस वक्त कोई नहीं जान सकता जिसके अपने घर में कोविड के इतने केसेस हो, बट स्टिल आई हैव टू बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बट स्टिल आई हैव टू बी पॉजिटिव, क्योंकि मैं पॉजिटिव रहूंगी तो आप लोगों को पॉजिटिव रखने के लिए मेरे पास कुछ बातें होंगी करने के लिए। देखिए, हमारा जो ये मुदाफ़ती निज़ाम है, या जिसको हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, ये जितना बेहतर होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा और ये हमें स्ट्रॉन्ग कर देगा। चाहे हम कोविड-19 पॉजिटिव हो या कोविड-19 नेगेटिव हो, हमें यही एटीट्यूड आगे लेके चलना है और टेंशन कम से कम करनी है। आई एम श्योर कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही होती हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इंतज़ार क्या करें जब तक कोई फाइनल वर्डिक्ट या कोई फाइनल बात या कोई भी सजेशन या कोई भी प्रिस्क्रिप्शन किसी भी चाहे वो टोटका हो, चाहे वो कोई मेडिसिन हो, वो किसी माहिर हर्बेटोलॉजिस्ट की तरफ से या किसी डॉक्टर की तरफ से ना आ रही हो, उस पर यकीन ना करें। बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा है कि जब तक कोविड रहेगा तब तक पाकिस्तानी जो है हम वो तमाम तर जंगलों की तमाम तर जड़ी बूटियों को कूट के हम उसकी चाय बना के पी चुके होंगे, ये कल दानिश एग्जैक्टली है, दानिश लेकिन हम मास्क नहीं लगाएंगे और हम अपने इम्यून सिस्टम की जानिब जो है वो फोकस नहीं करेंगे। अब आपकी इम्यून सिस्टम सोशल मीडिया की जितनी भी आती है कंफ्यूजन, उसको ज़रा साइड रखें, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि आप किस तरीके से वाया साइकोलॉजिकली या फिर वाया डाइट और समथिंग उसको किस तरह बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल जी, और आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, आपके जो सवालात होंगे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ अब से हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयात मारूफ हर्बेटोलॉजिस्ट डॉक्टर साहिबा, और साथ में पैथोलॉजिस्ट और चेयरमैन पाकिस्तान ग्रीन टास्क फोर्स डॉक्टर जमाल नासिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। टेलीविजन स्क्रीन पे भी आप ये नंबर देख सकते हैं और मैं आपके लिए रिपीट भी कर देती हूँ, 0213255068। आप हमें कॉल करें और जो भी आपका सवाल हो आप डायरेक्ट डॉक्टर से पूछ सकते हैं और किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे डॉक्टर बिल्किस साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। बिल्किस साहब आपका, डॉक्टर जमाल साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर जमाल साहब, हम आपसे शुरू करेंगे। ये बताइएगा कि आजकल हर बंदा एक डिप्रेशन का शिकार है और सबको ये लगता है कि क्योंकि कोविड-19 आ गया है, हमें खुदा न खास्ता अगर हो जाए तो पता नहीं फिर हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, गो कि हमने देखा कि सर्वाइवल रेट कहीं ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप इस पर कमेंट कर दें ताकि फिर हम बाकायदा आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इतना अहम सवाल किया कि मैं कई दिनों से इसी बात पे, मतलब मेरी जितनी डिस्कशन हो रही है इसी बात पे हो रही है कि ये जो हमने एक टेंशन की, डिप्रेशन की और खौफ की फ़ज़ा पैदा कर दी है, उसने मरीज़ों को ज़्यादा मार दिया। क्योंकि अगर आप दुनिया भर में इस वक्त भी स्टडी करें तो तकरीबन आपके इस वक्त कोई 74-75 लाख के करीब जो है वो लोग अफेक्ट हुए हैं और कोई 4 लाख, कोई 20-30 हज़ार के करीब डेथ हुई हैं। लेकिन अगर आप देखें उनमें से तकरीबन 50% लोग ठीक हो चुके हैं। इस वक्त भी दुनिया भर में जो माइल्ड सिम्टम के साथ मौजूद हैं वो तकरीबन 48% हैं।
اور جو کریٹیکلی ایل ہیں اگر آپ اس پوری تعداد سے کیلکولیٹ کریں تو 0.7% ہیں جو بڑے سیریس ہیں اور جن کا چانس ہے. اچھا اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جو ریسرچ ہوئی ان میں یہ ثابت ہو گیا کہ ایک تو مریضوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے, اس کے علاوہ انہوں نے مختلف جگہ جیسے فرانس میں, آپ کا اسپین میں, آپ کا سویڈن میں, ایون پاکستان میں ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا اینٹی باڈی کے ذریعے کہ لاکھوں افراد ایسے بھی ہیں جن کو آلریڈی جو ہے بغیر سمٹم کے ہو گیا. تو اگر آپ اس تعداد کو بھی کیلکولیٹ کریں تو بہت کم ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 3 دن پہلے میرے پاس ایک مریض آیا, صحت مند تھا, بالکل ٹھیک تھا. اس نے ٹیسٹ کرایا اور جب اس کو یہ پتہ چلا کہ مجھے کرونا ہو گیا, آپ یقین کیجئے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا خوف کے مارے اور وہ مر گیا. اسی طرح میں پرسوں ایک ہاسپٹل میں گیا, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی, تو ایک بچی دیکھی, اسے کچھ نہیں تھا. میں نے اس کے گھر والوں سے پوچھا اس کو کیوں لایا ہو, کیونکہ ینگ آدمیوں کو تو آنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ رات کو اس کو اتنا خوف ہو گیا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے انہیں لانا پڑ گیا. تو ہمیں خوف کی سزا سے نکالنا پڑے گا. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے مریضوں کی بات کی تو ہم اپنے پہلے مریض جو ہیں ان کو بھی لیتے ہیں یہاں پہ, جو پہلے کالر ہیں ان کو بھی لیتے ہیں, کیونکہ اب بہت سے لوگ یہ سوچنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہو گیا سو ہو گیا, اب کیسے اس کے ساتھ فائٹ کریں. شمس الرحمان صاحب کوہستان سے موجود ہیں. شمس, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. بتائیے گا کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ ہمارے ڈاکٹر سے؟ جی میں کوہستان سے بات کر رہا ہوں, اور کوہستان بہت دور افتادہ علاقہ ہے خیبر پختونخوا کا, جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا. یہاں پہ مریضوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور وینٹیلیٹرز کی سہولت تو یہاں پہ ویسے ہے نہیں. میرا سوال یہ ہوگا کہ اگر یہ کووڈ-19 اگر کسی بندے کو ہو جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے, اور خاص طور پہ خوراک میں اس کو کیا لینا چاہیے؟ صحیح ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. شمس الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے کوہستان سے. پہلے میں ذرا ڈاکٹر بلقیس آپ کے پاس آ جاتی ہوں, پھر ڈاکٹر جمال صاحب کے پاس جاتی ہوں. ڈاکٹر بلقیس, کیا چیزیں ان کے آس پاس, کیونکہ کوہستان سے ان کا تعلق ہے اور آپ علاقوں کے حوالے سے بڑے اچھے طریقے سے جانتی کہ ایسی کیا چیزیں جڑی بوٹی وہاں پر ہوگی, تو آپ ان کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی؟ اچھا, سب سے پہلے تو جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. خوف جو ہے آپ کی امیونٹی کو ڈاؤن کر دے گا. آپ نے اچھی پرسکون نیند لینی ہے, ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں. اس کے بعد جو کوہستان سے دیکھیں یا ہر گھر سے آپ کو مل سکتا ہے جو کا دلیا استعمال کریں, صحیح ہے. اور ہر گھر میں ادرک موجود ہوتی ہے, ادرک کا قہوہ بنا کے پیئیں. نمک کچھ بھی نہیں ہے تو نمک کے اسٹیم بھی لیں, جیسے نمک کو پانی میں ڈال کے اس کی اسٹیم لیں. اور نمک کے, اگر آپ کو بہت زیادہ کھانسی ہو رہی ہے تو آپ گاگلز نہیں کر سکتے, یاد رکھیے گا. بہت زیادہ کھانسی میں گاگلز کرنے سے اللہ نہ کرے جو گاگلز کرتے ہوئے وہ پانی آپ کی سانس کی نالی میں نہ چلا جائے. تو جب اگر آپ, اس کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ کہ آپ اسٹیم لے لیں. اور کوہستان میں جو ہے یوکلپٹس یعنی سفیدے کے درخت بہت ہیں. سفیدے کے درخت جو ہیں اس کے بھی اگر اسٹیم لے لیا جائے تو بھی جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا. پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں, نیند پوری کریں. ابھی کوہستان میں اتنے سارے فروٹس آئے ہوئے ہیں, خوبانی ہے اس کا استعمال کریں, چیری ہے اس کا استعمال کریں. ہاں البتہ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں, تو ابھی فی الحال دہی کا استعمال اگر دوپہر میں کرتے تو ٹھیک ہے, لیکن رات میں نہ کریں. کیونکہ رات میں اگر آپ دہی کھائیں گے, ویسے تو پری اینڈ پرو بایوٹک ہوتا ہے, لیکن کیونکہ اس کا تعلق آپ کے لنگ سے ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو وہ ٹھنڈا لگ سکتا ہے. اور ہلدی ہر گھر میں ہوتی ہے جی, ہلدی اور کالی مرچ اس کا بھی استعمال کریں, اس سے بھی بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ. اچھا, دوسرے کالر کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسلام آباد سے صبا اسامہ موجود ہے, سیالکوٹ سے. جی صبا, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم, کیسی ہے مرضیہ, ٹھیک ہے؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ بتائیے سوال اپنا. اچھا, ڈاکٹر بلقیس صاحبہ سے میرا سوال تھا. کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کرونا سے کتنا یہ خوف و ہراس پایا جا رہا ہے لوگوں میں نا, تو بڑوں کا تو یہ ہم لے لیتے ہیں ٹیبلٹ فارم میں بھی اور پھل میں بھی, اور بچوں سے ذرا بتائیے گا پلیز. بچے بہت تنگ کرتے ہیں, کچھ کھاتے نہیں ہیں. ان کی امیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم کیا ان کو دیں کہ ان کی امیونٹی اسٹرانگ ہو, جسے وہ کھانا بھی کھائیں تھوڑا اور ذرا وہ بچے صحیح رہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وی گاٹ یور کوسچن, تھینک یو سو مچ. جی بالکل, میں بتا دیتی ہوں. جی
आपने क्या करना है, कलौंजी का तेल लेना है, सिर्फ 1 ड्रॉप कलौंजी का ऑयल लेना है, 1 ड्रॉप, और लेमन जूस आपने लेना है। जैसे लेमन जूस आपने लिया, एक आधे नींबू का जूस निचोड़ लें, उसमें 1 ड्रॉप जो है आप कलौंजी का डाल दें, और उसमें जो है ना आप थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पानी डाल दें। तो ये इस तरह का 2 से 3 घूंट की चीज बन जाएगी। ये सुबह शाम बच्चों को दें। अच्छा, मैंगो आ गए, यानी आम आ गए, फलों का बादशाह है, इसका जो है आप मैंगो शेक बना के बच्चों को दें। ठीक है, बच्चों की नींद पूरी करें। अच्छा, बच्चों को कैमोमाइल टी, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी गुले बाबूना का कहवा जो है वो दे, ताकि खौफ जो है ना, एंजाइटी, स्ट्रेस, उससे भी निजात मिले। अच्छा, मैं यही सवाल में चाहूंगी कि ये मैं इससे पहले कि हम नेक्स्ट कॉलर लें, मैं डॉक्टर जमाल के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर जमाल साहब, ये बताएगा कि बच्चे जो कि कोविड पॉजिटिव होते हैं वो बच्चे बड़े जल्दी रिकवर कर जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए भी क्या वही SOPs होनी चाहिए, वही तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए जो कि बड़े फॉलो करते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे तो होना तो यही चाहिए कि बच्चों को भी हम वही फॉलो करें कि ज़ाहिर है बच्चे होते हैं, तो उनको बड़ा मुश्किल है कि इस तरह से कंट्रोल करके कमरे में बंद करके उनको रखना। लेकिन ये है कि माँ बाप की, इससे बेहतर ये कि बच्चों को आप करें, बल्कि जो माँ बाप और बड़े लोग हैं उनको इसमें ताउन ज़्यादा करना चाहिए। और जैसे डॉक्टर साहिबा ने अभी बताया कि बच्चों की ग़िज़ा जो है ना उसको ज़्यादा इम्प्रूव करें। अच्छा, खुदा का शुक्र है, ये अल्लाह की तरफ से कि ये वायरस जो है ये कुछ बच्चों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा, और अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि एक भी डेथ जो है वो कोरोना से किसी बच्चे में नहीं हुई। और हमारे पास भी जो टेस्टों की तादाद है वो ज़्यादातर जो है वो लोग आ रहे हैं जो बड़े हैं, बच्चे बहुत कम तादाद में है। और अल्लाह का शुक्र ये है, 1-2 साल बच्चे जो 1-2 साल उम्र के हैं, अक्सर माएँ परेशान होकर आती हैं, बाप परेशान होते हैं जी इन बच्चों का क्या करें। लेकिन अल्लाह का निज़ाम ये है कि जब हम टेस्ट करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे, ये को खुदा की तरफ से अल्लाह ने ये को करम किया हुआ है बच्चों के ऊपर। देखिए, बात जो पहला सवाल था ना आपका, वो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। खौफ इसलिए नहीं होना चाहिए कि जब हम दुनिया के हवाले से अपने मुल्क में तादाद तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी, कोई बात नहीं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मरने वालों की तादाद अगर आप दुनिया से कंपेयर करें तो बहुत हमारी तादाद कम है। और अब ये जो एंटीबॉडी टेस्ट आ गया है, जो दुनिया में रिसर्च हुई है, अगर हम इसको एक कम मास लेवल पे चेक करें तो ये तादाद 1,13,000 नहीं बल्कि 10 लाख होगी। लेकिन इसमें से 8,97,000 लोग वो होंगे जिनको या तो बहुत हल्का सा सिम्टम आए थे या उनको कोई तकलीफ नहीं होती। तो खुदा का शुक्र है जब हम इस मॉर्टेलिटी को निकालेंगी। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अब्दुल जी, मैं वो एक आखिरी बात, बस एक जी सर, इसको प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। अब्दुल वहीद कोयटा से। जी अब्दुल वहीद, बताइएगा क्या पूछना चाह रहे हैं आप इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ, सेटेलाइट टाउन से। तो मेरा सवाल है डॉक्टर जमाल नासिर साहब से। जी कहा जाता है कि कोरोना आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को कमज़ोर कर देती है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि कुव्वत मुदाफ़ियत को इंसानी जिस्म का कौन सा ऑर्गन कंट्रोल करता है? सही, ठीक है। और दूसरा ये है कि कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करनी चाहिए हमें? बिल्कुल, हाँ ठीक है। हमने मुदाफ़ियत के वाले से बात तो की, लेकिन जो ऑर्गन के वाले से बात की, डॉक्टर साहब आपने इनका सवाल सुना, प्लीज़ जवाब इसका दीजिएगा। देखिए, खुदा का निज़ाम ऐसा है कि जब भी कोई बाहर से इन्फेक्शन हो जिसको हमारी बॉडी जो है फ़ौरन समझती हो, बाहर की गैर मुल्की समझती हो, जब अल्लाह अंदर दाखिल होता है तो सबसे पहले जो सेल होते हैं वो होते हैं लिम्फोसाइट्स, और वो कहलाते हैं टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ये इनकी सब ग्रुप है। ये जो सफ़ेद खुलियात होते हैं उनका एक हिस्सा होते हैं। और ये जो लिम्फोसाइट है, बुनियादी तौर पे जो लिम्फ नोड्स होती हैं ना, उनके अंदर ये आपकी तिल्ली स्प्लीन जो होती है उसके अंदर, ये लिवर है उसके अंदर, और थोड़ा बहुत बोन मैरो जो खून जो हड्डियों के अंदर गूदा होता है उसमें बनते हैं। और ये अल्लाह का निज़ाम होता है कि जब ये पहली बारी कोई चीज़ दाखिल होती है तो ये जो लिम्फोसाइट हैं वो उसको पहचानते हैं कि ये बाहर की कोई चीज़ आई है, तो उसके मुकाबले में फ़ौरन एक एंटीबॉडी बनाते हैं जिसको IgM कहते हैं। जब हम खून में IgM टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि ये इन्फेक्शन आई हुई है। थोड़े अरसे के बाद वो एक और एंटीबॉडी बनाते हैं, ये IgM ख़त्म हो जाती है, उसको कहते हैं IgG। वो जब आ जाती है तो वो वायरस को मारना शुरू कर देती है, और जब उसका एक लेवल बन जाता है तो वायरस बॉडी से ख़त्म हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर में आजकल हम एंटीबॉडी IgG को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको वो पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब है कि उसको बंदे इम्यून हो चुका है, उसको वायरस कुछ नहीं कहेगा, उसके अंदर से वायरस
اس ہو کے بیمار کر کے उसने गुजर वायरस को चुका है, अपनी बॉडी इसलिए से आज निकाल दिया हुआ है। अच्छा, हमारी एक ऐसे कॉलर हमारे साथ मौजूद है, ताल्लुक इनका कराची से, शाहिद अली हैं। जी शाहिद, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये डॉक्टर जमाल साहब से मेरा सवाल ये, मुझे तकरीबन हफ्ता 5 दिन से सूखी खांसी है, ना बुखार है, ना जिस्म में दर्द है, ना कुछ है, ना सिम्टम वगैरह कुछ भी मुझे फीलिंग नहीं हो रही है। जबकि मैं कोरोना का डॉक्टर साहब कहते हैं तो मैं टेस्ट करवाऊं या मेडिसिन या शरबत वगैरह लेके मैं अपने आप को क्वारंटीन कर लूं। आपने अभी तक टेस्ट नहीं करवाया? नहीं, टेस्ट मैं करवाने गया था, आज भी मुझे टोकन नंबर नहीं मिला है। इंशाल्लाह कल जाऊंगा दोबारा डाउ में ना टेस्ट करवाना। 150 वो लोग मतलब टेस्ट करते हैं, तो टोकन नंबर नहीं मिला, इस वजह से सुबह फिर दोबारा जाऊंगा इंशाल्लाह। जी डॉक्टर जमाल प्लीज बताइएगा इनको। ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं हर इंटरव्यू में बता रहा हूँ कि बहुत, मेरे ख्याल 80% से ज़्यादा लोग वो हैं कोरोना के जिनको या तो सिम्टम हो ही नहीं रहे और या हो भी रहे हैं तो बहुत हल्की सी किसी को खांसी हो गई, हल्का सा बुखार हो गया। जैसे इन्होंने बताया कि मुझे हल्की सी खांसी और बुखार हुई थी, देखें ये इनका सवाल बड़ा ज़बरदस्त था। ये कहना तो बड़ा आसान है कि टेस्ट क्यों नहीं कराया। मसला ये है कि गरीब आदमी जो है ना वो बेचारा बड़ा परेशान है। वो जब हॉस्पिटल पे जाता है तो लोड बहुत है हॉस्पिटल्स के ऊपर, तो वो बेचारा लाइनों में लग के घबराने के बजाय वापस अपने घर आ जाता है और कोशिश करता है कि अपने आप को ही आइसोलेट कर ले, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए। तो ये बड़ी जायज़ बात है कि अस्पतालों में इतना लोड हो चुका है PCR कराने पे, तो उसकी जगह मैं यही एडवाइस करना चाहता हूँ आपके तवस्सुस से कि जिनको इस तरह हल्की फुल्की बीमारी हो वो अगर टेस्ट नहीं करा सकते या कराना नहीं चाहते या मजबूरी है, अपने आप को क्वारंटाइन कर लें थोड़े दिन के लिए। वैसे ही एक लेटेस्ट स्टडी आई है CDC की और सिंगापुर से कि जब किसी को वायरस अंदर दाखिल हो जाता है और अलामतें आ जाती हैं तो खुदा ने ऐसा निज़ाम बनाया कि 5 से 7 दिन के बाद उसके अंदर वायरस ट्रांसफ़र होने की पोजीशन में ही नहीं रहता, किसी और को 10 दिन के बाद वो बंदा। शाहिद आपने ज़रूर ये सुन लिया होगा, तो प्लीज़ अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। हैदराबाद से सदफ़ रहमान मौजूद हैं। सदफ़ बताइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि आई एम 7 मंथ प्रेगनेंट, ठीक है। इन दिनों में वैसे ही इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं इन दिनों में ऐसे क्या करूं। मैं खजूर खा रही हूँ, शहद पी रही हूँ, लेकिन मजीद मुझे अगर आप एडवाइस दें तो मेरे लिए अच्छा होगा, या मेरे जैसे और भी जो हमला ख़वातीन हैं उनके लिए भी फायदेमंद। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी सदफ़ आपका। डॉक्टर बिल्किस जल्दी से आपके पास आ रही हूँ क्योंकि वक्त मुख्तसर है। जी जी, नारियल का पानी आप इस्तेमाल करें, सही है। नारियल का पानी बहुत अच्छा है आपके लिए, और आप नींबू पानी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप 7th मंथ है तो आप नींबू पानी इस्तेमाल कर सकती है। एक जो लौंग है वो रोज़ाना आप चबाएं, और अदरक का कहवा भी आप पी सकती हैं, या कहीं से आपको थाइम मिल जाता है तो थाइम टी आप पीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और एहतियात कीजिए, घर में रहिए, परेशान नहीं हुए, खूब भरपूर नींद लीजिए। और स्ट्रेस वाली जैसे सोशल मीडिया की हंसी मजाक वाली तो चीज़ें तो चल जाती हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने सोशल मीडिया देखना ही नहीं है। आप ऐसा करें, कॉमेडी मूवीज़ देखें ताकि आपका मूड जो है वो सही रहे। बिल्कुल, आप हमारा शो देख लें, आपका मूड सही हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर जमाल हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का ज़रा शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब जैसे कि सबको मालूम है कि कोरोना की वबा है, लेकिन इस दौरान जो टेली हेल्थ क्लिनिक्स हैं वो किसी नेमत से बिल्कुल भी कम नहीं है। और सेहत कहानी एक ऐसा फोरम है जहां मरीज ऑनलाइन डॉक्टर से रुजू कर सकता है। सेहत से मुतालिक ये एक जदीद ऐप है, इसकी मदद से मरीज को घर बैठे, फिर सुन लें, घर बैठे इलाज की सहूलत दस्तयाब है। बिल्कुल जो इस ऐप में बैफक 1500 से ज़ायद ख़वातीन जो हैं वो 24 घंटे मरीजों के लिए बिल्कुल अवेलेबल होती हैं। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करी है सेहत कहानी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर सारा, और साथ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रियोन एनर्जी के CEO मुश्तबा साहब। आप दोनों को हम बाखबर सवेरा में वेलकम कहते हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी सारा आपसे कि सबसे पहले मैं इनफैक्ट मुश्तबा आपके पास आना चाहूँगी। आप ये बताइएगा, टेली क्लिनिक पाकिस्तान में माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि सिंस अभी नहीं काफ़ी देर से आ गया है। कैसा रिस्पॉन्स है इसका, और कितनी हद तक आप लोगों की मदद कर सकें इसके थ्रू? बहुत शुक्रिया मदिया प्रोग्राम पे दावत देने का। सबसे पहले तो मैं देखिए शुक्रिया अदा करूँगा अपने तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स का, फ्रंट लाइन स्टाफ का, जो इस कार खैर में हमारी फ्रंट लाइन पे आपके लिए मेरे लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो जितना उनका शुक्रिया अदा किया जाए कम है।
میں جیسے آپ نے ذکر کیا میں ریون انرجی کا سی او ہوں جو کہ ایک رینیوبل انرجی کمپنی یعنی صاف ذرائع سے بجلی بناتی ہے یہ کمپنی داؤد گروپ کا پارٹ ہے. اگر میں تھوڑا سا اگر آپ کو پیچھے لے جاؤں داؤد گروپ کی ہسٹری کچھ اس طرح ہے کہ ہم ایک کارپوریٹ اینٹی ہیں اور جب سے پاکستان بنا ہے جتنے کرائسس پاکستان نے فیس کیے ہیں داؤد گروپ نے آگے بڑھ کے اس میں ملک کو سپورٹ کی ہے, عوام کو حکومت کو سپورٹ کی حل کرنے کے لیے, بیٹ ایگریکلچر یا آپ انرجی دیکھ لیں, انرجی کے اندر ہم نے کافی انویسٹمنٹ کی. جب انرجی کرائسس آیا اس کی ایک مثال تھر میں ہے جہاں پہ ہم نے کول کے ذخائر پہلی دفعہ ڈیولپ کیے, نہ صرف بجلی بنائی بلکہ وہاں پہ بہت بڑا سوشل ڈیولپمنٹ پروگرام سٹارٹ کیا. جب کرونا کا کرائسس آیا مدیحہ پاکستان میں پہلی دفعہ میرے خیال میں فروری میں پہلا پیشنٹ آئیڈینٹیفائی ہوا, تو ہمارے چیئرمین حسین داؤد صاحب نے گروپ کمپنیز کو اکٹھا کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم 1 کروڑ روپے کی رقم سے انویسٹ کریں گے اس کرائسس کو فائٹ کرنے کے لیے. پلیج کیا ہم نے, نہ صرف یہ کہ ہم رقم انویسٹ کریں گے 1 کروڑ روپیہ انویسٹ کریں گے بلکہ ہم نے اپنے بہترین مائنڈز ریسورسز کو اس کے اوپر لگایا کہ ہم سولوشنز ڈھونڈیں اس کو حل کرنے کے لیے. تو اگر آپ سکسیزفل ملک جن ملکوں نے افیکٹولی اس کرائسس کو ڈیل کیا ہے ان کا جائزہ لیں, جرمنی لے لیں, ساؤتھ کوریا لے لیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ٹیسٹنگ اور ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی کو انہانس کرنا ہے. بالکل صحیح. تو ہم نے ایک بہت بڑا انیشیٹو سٹارٹ کیا رورل سندھ میں, رورل پنجاب میں, جہاں پہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں تھی, انڈس ہاسپٹل کے ساتھ, شوکت خانم کے ساتھ, اور ہم نے وہاں پہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی انہانس کیا. ہم نے کوئی تقریباً 100 ملین روپے لگا کے پی پیز پرووائڈ کیے پورے پاکستان میں ہیلتھ کیئر ورکرز کو. تیسرا جو اس کا حصہ یہ تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ 20% تقریباً 20% لوگ ایسے ہیں جن کو سیویئر سمپٹمز ڈیولپ ہوں گے پاکستان میں, ان کو پیشنٹ کیئر چاہیے ہوگی. تو اس کے لیے ہم نے ہاسپٹلس کو انہانس کرنے کے لیے ایک خاص رقم مختص کی. ہم ہاسپٹل کیپیسٹی انہانس کر رہے ہیں, ہیلتھ کیئر ورکرز کو ٹرین کر رہے ہیں پورے پاکستان میں. تو یہ جو آپ سارا انیشیٹو بتا رہے ہیں بہت بہترین ہے مجتبیٰ صاحب. لیٹس گو ٹو ڈاکٹر سارا. جب ہم بات کر ہی رہے تھے ابھی ڈاکٹر سارا, تو صحت کہانی ایپ میں نے تو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے, ہمیں بتائیے گا کیسے یہ کام کرتی ہے اور کتنا اچھا رسپانس آ رہا ہے اس کا. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. آپ اگر ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا کنسلٹ ناؤ کا, اور آپ کو ایک لسٹ آف ڈاکٹر نظر آئے گا جو 24/7 اویلیبل ہیں آپ کے ساتھ چیٹ, آڈیو یا ویڈیو کنسلٹیشن کرنے کے لیے. اور اگر آپ کنسلٹ ناؤ کا بٹن دبائیں تو آپ لیس دین 60 سیکنڈ میں ایک ڈاکٹر سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور اپنے گھر بیٹھے بیٹھے آپ ان سے ویڈیو کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. آپ اپنی امیجز اپلوڈ کر سکتے ہیں, اپنے ریکارڈز اپلوڈ کر سکتے ہیں ڈیورنگ کانورسیشن, اور آپ کو پرسکرپشن بھی ملتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے تو فور کووڈ-19 ہمارے پاس ایک ہیلپ لائن بھی ہے جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں, اور اس ہیلپ لائن پہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ حاصل کر سکتے ہیں فور کووڈ اسپیسیفک ایشوز. اینڈ آئی تھنک اس پہ ڈاکٹرز اویلیبل کرنے کے لیے, اس پہ ہماری ہیلپ کرنے کے لیے, کیونکہ جب کووڈ-19 ہوا تھا تو ہم نے اس ایپ کو فری کر دیا تھا. تو مارچ سے ایپ بالکل فری لوگ یوز کر رہے ہیں, نو میٹر وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو. اور سارا سے اچھی بات ہے کیونکہ آپ ہمارے اسپیشلی شو میں بھی آئی تھی, اور یہ آج سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے جب نے اس کی بات کی تھی. لیکن اچھی بات ہے کہ جب اینگرو نے اسٹیپ ان کیا تو اس کے بعد جو آپ لوگوں کو ڈاکٹرز کا نیٹ ورک ہے وہ بھی کافی زیادہ وسیع ہو گیا. جی آئی تھنک ڈی ایچ گروپ نے جو یہ پلیج کیا ہے, آئی تھنک ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے کووڈ کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے تھرو ڈفرنٹ تھنگس. لیکن ایک اور چیز ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کو امبریس کیا ہے. انہوں نے اسٹارٹ اپس کو ہیلپ کی ہے, اور ہمارے جیسے اسٹارٹ اپ کو ہیلپ کی ہے کہ ہماری مسل مضبوط ہو, ہم زیادہ لوگوں کے کام آ سکیں. اینڈ تھرو دیئر ہیلپ ہم 100 ڈاکٹرس کو ایڈ کر پائے ہیں اپنے نیٹ ورک میں, ان کو فائنینشلی انسینٹیوائز کر پائے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ایپ میں آئیں اور لوگوں کی مدد کریں. کیونکہ وی ہیو ڈاکٹر والنٹیئرز, بٹ اوبویسلی اگر آپ کسی ڈاکٹر کو انسینٹیوائز کرتے ہیں فائنینشلی تو ان کا بھی اس میں گین ہوتا ہے, وہ زیادہ ایپ پہ آتے ہیں اور زیادہ پیشنٹس کو دیکھتے ہیں. صحیح. کوئکلی مجتبیٰ آپ کے پاس آؤں گی, وقت بہت کم ہے. آپ لوگوں کا ٹارگٹ کیا ہے جس پہ آپ لوگ اب کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں پیشنٹ کیئر جہاں تک تعلق ہے تو سب سے پہلا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم ہاسپٹل فیسلٹیز اور ہیلتھ کیئر اسٹاف کے اوپر لوڈ کم کریں. تو جیسے ڈاکٹر سارا نے ذکر کیا کہ اس کے لیے ٹیکنالوجی کا یوز بڑا ضروری ہے. تو جب ہم نے ٹیلی میڈیسن کی آپشنز دیکھی تو ہمیں لگا کہ صحت کہانی کی پروڈکٹ سب سے اچھی ہے. ان کے پاس بہترین ڈاکٹرز ہیں, ان کا کانسیپٹ بڑا اچھا ہے. مدیحہ آپ جانتی ہیں ان کو پہلے سے بلا چکی ہیں. ان کی اسٹوری ایسی ہے کہ جو فیمیل ڈاکٹرز ہیں جو گھر پہ بیٹھی ہیں, جو پریکٹس نہیں کر رہی ہیں, ان کو یہ اپنی ایپ کے اوپر فیسلٹی دے رہی ہیں کہ گھر بیٹھ کے وہ لوگوں کو سپورٹ کریں. میں بس فائنلی اپنا ایگزامپل شیئر کروں گا. میری کمپنی میں 3 لوگ انفیکٹ ہوئے,
ان کو ہم نے صحت کہانی سے کنیکٹ کیا, ان کو بہترین ہیلتھ کیئر سپورٹ ملی گھر بیٹھ کے, ان کا فیڈ بیک بڑا زبردست ہے, ان کے پاس بہترین ڈاکٹرز ہیں. میری ریکویسٹ ہے تمام عوام سے, یہ فری آف کاسٹ ایپ اویلیبل ہے, ڈاؤن لوڈ کریں اور ہاسپٹلس پہ جیسے آپ نے کہا میں ڈاؤن لوڈ کر چکا ہوں اینڈ آئی ہوپ کہ اس کا ہم استفادہ کریں گے. تھینک یو سو مچ مجتبیٰ صاحب اور ڈاکٹر سارا, آپ بہت زبردست اس حوالے سے کام کر رہے ہیں اور لوگ اس سے ضرور استفادہ کریں گے. اب آپ سے ملیں گے ہم کل, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.